وقت وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس تقریب میں وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار صاحب، وفاقی وزراء، منسٹر آف اسٹیٹ، دیگر مہمانان گرامی، صحافی حضرات، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور تقریب کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ اس کے لیے میں گزارش کروں گا حافظ محمد عظیم صاحب کو کہ وہ آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار رواں سال کے اقتصادی جائزہ رپورٹ کی تقریب میں اس وقت موجود ہیں اور ابھی تلاوت قرآن پاک ہو رہی تھی۔ حاضر ہوں گی ایک بریک کے بعد۔ Nestle Fruta Vitals. Nestle. Good food, good life. Jazz monthly YouTube and social offer. 4 exciting flavors, 4 new ways to chill. Nescafe. ابھی اپنے قریبی ریٹیلر یا مائی ٹیلینور ایپ سے آفر لگوائیں۔ ہر پیالے میں غذائیت کا اعتماد۔ From Nestle. ہم ہیں جنزان اور آپ؟ ان کے اسپیشل بریکفاسٹ کے لیے صرف نیسلے ملک پیک کریم۔ اسی اعتماد نے بنایا خالص دودھ سے بنی نیسلے ملک پیک کریم کو پاکستان کی نمبر 1 ڈیری کریم۔ اب ہر دن خوشی سے Use code پہلا order and enjoy ₹250 off۔ اس افراتفری اور مہنگائی کے دور میں آرام دہ اور محفوظ سفر کو ہم بنا رہے ہیں ممکن آپ کے لیے، اور مصروف ہیں شب و روز آپ کو بہتر سے بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے۔ پیپلز بس سروس ہو یا پاکستان کی پہلی مکمل ماحول دوست الیکٹرک بس، یا پھر ہو گرین ہائیبرڈ بس کا آغاز۔ خواتین کے لیے مختص پیپلز پنک بس سروس ہو یا عبدالستار ایدھی اورنج لائن BRT، ہمارا مقصد ہر شہری کو ملے معیاری، جدید اور سستی سفری سہولیات۔ ہر ماں، بہن اور بیٹی کے لیے سفر دشوار نہ ہو، انہیں ملے محفوظ سفر اور تحفظ کا بھرپور احساس۔ ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ، حکومت سندھ، خدمت میں سب سے آگے، سندھ۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار رواں مالی سال کے اقتصادی جائزہ رپورٹ کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہماری یہ بریفنگ جب ختم ہوگی تو انشاءاللہ سب کو یہ کاپیز پیش کریں گے، دونوں سیٹ بھی اور USB ڈرائیو بھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کا جو ہم نے ذمہ داری سنبھالی تھی تو ہماری اس وقت تھیم تھی 3 E's۔ اس وقت اکانومی ٹیٹس کا شکار تھی، بڑے مخصوص حالات تھے، انرجی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور ملک میں دہشت گردی تھی، اور وہ 3 E's کے کانسیپٹ پہ ہم نے اپنا سفر شروع کیا، اور پاکستان میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ڈکلیئرڈ تھا جنرل الیکشن سے پہلے 2013 کے، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کون سی پارٹی الیکشن جیت کر آئے گی، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری دیں گے۔ تو وہ 3 E's جو ہے اس وقت جو حکومت پچھلے سال سے جو اپنے ذمہ داری نبھا رہی ہے،
تو اس کو ہم نے اس سال آپ کہہ لیں کہ یہ ای پاکستان یا 5 ایز کا نام آپ دے سکتے ہیں. اس کو ہم جو ایریاز کور کر رہے ہیں, جیسے میں نے آپ کو 20 طرح سے یاد کرایا کہ اس وقت جو سبجیکٹس تھے وہ اکانومی, انرجی اینڈ ایکسٹریمزم تھا, اور اب جو ہے وہ ایکسپورٹس, ایکوٹی, امپاورمنٹ, انوائرمنٹ اینڈ انرجی. میں یہ کہہ دیا ای پاکستان یا 5 ایز. تو بیسیکلی یہ ہمارے 5 ہمارے ڈرائیونگ ایریاز ہیں, اور اس کے حوالے سے ہم نے یہ جو اپنا روڈ میپ اگلے سال کا بنایا ہے. اس سال میں ظاہر ہے کہ بیرونی اور ملکی جو عوامل کے حوالے سے ایک بڑا مشکل ترین سال تھا, بڑا چیلنج سال تھا, اور حکومت نے مجموعی معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے یا ہینڈل کرنے کے لیے کم از کم اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. آپ جو اکنامک سروے آپ کو جو پیش کر رہے ہیں, اس کی جو اشاعت ہر سال وزارت خزانہ کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس میں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز موجود ہیں, ترقیاتی پالیسیوں کی ساری تفصیل ہے, حکمت عملیوں کے ساتھ ساتھ معیشت کی شعبہ جاتی کامیابی یعنی سیکٹورل جو پرفارمنس ہے اس کا ذکر ہے, اور سوشو اکنامک ڈیولپمنٹس کے بارے میں تفصیلات آپ کو اس اپنا اکنامک سروے میں ملیں گی. ہم نے جو ایریاز کور کیے ہیں اس میں زراعت بھی ہے, اس میں مینوفیکچرنگ بھی ہے, اس میں توانائی بھی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی ہے. یہ ایک جو شعبہ ہے اس کا چونکہ فیوچر کافی زیادہ اس میں ترقی کی گنجائش ہے اور انشاءاللہ موقع ہے, تو وہ اس کو ایڈ کیا گیا ہے ایز اے اسٹینڈ الون. کیپٹل مارکیٹ ہے کیونکہ وہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اس میں ہیلتھ ہے, اس میں ایجوکیشن ہے, ٹرانسپورٹ ہے, اور مواصلات, کمیونیکیشن, یہ سب چیزوں کو یہ احاطہ کرتا ہے. اس میں بیسیکلی 17 چیپٹرز ہیں, اور یہ 17 چیپٹرز جو انیشل جو ہم نے اس کی جو پریزنٹیشن کی, اس کے بعد چیپٹر وائز آپ کو اس اکنامک سروے میں یہ چیپٹر وائز بھی تفصیل آپ کو مل جائے گی. ہم بیسیکلی میں عرض کروں گا کہ جو میکرو اکنامک جو استحکام کی بحالی کے لیے اور جو ایک ہم نے ایک پلان بنایا ہے, وہ اس کے انڈیکیٹرز آپ کو اس میں ملیں گے. ظاہر ہے کہ کچھ ایسی ہم فسکل اینڈ کوئی جو ہے ریفارم کے حوالے سے فسکل میئرز اینڈ سب اسٹرکچر ریفارمز اور کچھ دوسری چیزیں وہ آپ کو کل انشاءاللہ نمبرز کے ساتھ بجٹ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہمارا آبجیکٹو کیا ہے. آبجیکٹو آبویسلی ہمارا یہ ہے کہ ہم میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو ریسٹور کریں, کیونکہ اس وقت جو ہمارے حالات پچھلے چند سالوں سے گزرے ہیں, وہ اگر کوئی کہے کہ ایک سینٹنس میں بتا دیں کہ اس کا خلاصہ کیا ہے, تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو دنیا کی 24ویں بڑی معیشت 2017 میں بن چکی تھی, وہ انفارچونیٹلی وہ 2022 میں 47ویں معیشت بنی ہے. تو دیٹ اسپیکس آل کہ جی کہاں ہم پہنچے ہیں. اب ہم نے واپس اس کو واپس اسی طرف جانا ہے ملک کو لے کے. ترقی کا جو راستہ ہے اس کی سپیڈ بھی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ اس ملک میں جو ہے برکت ہو اور صحیح ایفرٹ ہو, تو ہم اس کو واپس ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جو جہاں 2017 میں یہ ملک پہنچ چکا تھا, اور پہنچنے کے بعد جو اس کو پریڈکشن تھی کہ جی چند سالوں میں پرائس واٹر کوپرز آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان دنیا کی G20 جو پریمیئر اکنامک گلوبل کلب ہے اس کا ممبر ہوگا. تو وہ جو ایک ہم نے لاسٹ اپرچونٹی ہو چکی ہے, وہ ہمیں دوبارہ یعنی واپس راستہ اسی طرف پاکستان کا مقدر ہونا چاہیے, اور سب کو مل کے اس کی طرف کوشش کرنی چاہیے. تو حکومت کی اسی لیے جو فوکس ہے, جو ویژن ہے کہ ہم میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو ساتھ ہم انکلوسیو اینڈ ریزیلینٹ گروتھ ٹریجیکٹری پر چلے. اور وہ انکلوسیو اس لیے کہ یہ میل ڈسٹریبیوشن نہ ہو ریسورسز کی, ویلتھ کی, اور یہ بڑا اور سسٹینیبل ہو, کہ یہ نہیں کہ جیسے اب جو کچھ ہوا تھا وہ خود اللہ معاف کرے کہ 24ویں معیشت سے ہم گر کے 47 میں بہت زیادہ محرکات ہیں, وہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے, انالائز ہو سکتی ہے, ہو بھی چکی ہے. تو یہ ہماری جو ہے وہ بیسیکلی اگر ہم یہ کریں گے, آپ کے انویسٹر کا بھی کانفیڈنس بلڈ ہوگا, آپ کے جو مارکیٹس ہیں, جو نروسنس ہے, جو پرسیپشنز ہے پاکستان کی, وہ بھی ٹھیک ہوں گی. مثلا آپ دیکھیں کہ اسٹاک مارکیٹ کو آپ ایک آئسولیٹڈ آئٹم اگر دیکھیں
तो वो जो डी म्यूचुअलाइजेशन नहीं हो रही थी कई सालों से, तो 2013 में जब हमारी हुकूमत आई, हमने बड़ी ज़बरदस्ती उसको यानी अपने जिम्मेदारी निभाई, और उसके नतीजे में जो लाहौर कराची स्टॉक चेंजेस जो मर्ज हो के पाकिस्तान स्टॉक चेंज बनी, तो आपने देखा कि किस तरह उसने भी अपना सफ़र तरक्की का तय किया। 19,000 पॉइंट पे तकरीबन मार्केट थी जिस दिन हमने 2013 में इलेक्शन जीता था। जिस दिन ओथ हुई थी मियां नवाज शरीफ ने 5 जून 2013 को, उस वक्त करीबन 21,000 में पहुंच चुकी थी, और हम उसको करीबन 50,000 क्रॉस अपने टेनोर में किया 2017 तक। और $100 बिलियन, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाज $100 बिलियन क्रॉस कर चुकी थी 2016-17 के साल में, जो कि आपका मैच करता है। उस वक्त $70 बिलियन आपके एक्सटर्नल डेट्स थे और $100 बिलियन आपकी स्टॉक मार्केट थी। ये था पाकिस्तान उस वक्त का कि किधर पाकिस्तान जा रहा था। तो हमारी बेसिकली एज पाकिस्तानी, एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ये हमारी सबकी ड्यूटी है, और हम उसी पे, हमारे अलाइज भी, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने उसी रास्ते पे वापस जल्दी से जल्दी चला जाए। मैं आपकी गुजारिश, आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा थोड़े से चंद डाटा के साथ, कि इस हुकूमत ने जो 2022 में ज़िम्मेदारी संभाली, मैंने आपको पता है कि चंद महीने बाद मैंने सितंबर के एंड में संभाली, लेकिन इस हुकूमत ने लास्ट ईयर जब ज़िम्मेदारी संभाली तो पाकिस्तान किधर खड़ा था। मेरा ख्याल है कि उसका रिमाइंडर या उसकी निशानदेही करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको याद होगा कि बहुत शदीद किस्म के चैलेंजेस आ चुके थे, उसमें जो फिस्कल स्पेस थी वो श्रिंक हो चुकी थी, महंगाई का प्रेशर चल रहा था, अपवर्ड था, और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी, अभी नंबर्स भी देख लेंगे, वो आसमानों की तरफ रवा दवा था, और हमारी जो फाइनेंसिंग नीड्स थी वो बढ़ती जा रही थी। जाहिर है कि अगर आपका डेट स्टॉक बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, पॉलिसी रेट बढ़ेगा, तो आपकी फाइनेंसिंग नीड भी उसी तरह बढ़ेंगी। और ये वो एक स्टेट ऑफ अफेयर्स थी जिस वक्त इस हुकूमत ने जिम्मेदारी संभाली। और मैं समझता हूँ कि अगर ये कुछ महीने और ना संभालती तो अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लास्ट थर्ड क्वार्टर बिफोर दिस गवर्नमेंट केम इन, प्लीज़ वो याद रखें कि 6,400 बिलियन डॉलर्स का रिडक्शन हुई थी आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में एक क्वार्टर में। हम 5 क्वार्टर गुजर चुके हैं, अगर उस स्पीड से हो तो फिर क्या हालत होती। तो वो मैं इसलिए आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि वो हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो ऑब्वियसली एक्सटर्नल अकाउंट का है। आप भी सुन रहे हैं पिछले 1 साल से, अंदरूनी जो है लोग वो भी और एक्सटर्नल भी, एक ही बात हो रही थी 2 महीने पहले तक, बाजी पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट करना है, और दूसरा ये फ्राम पेमेंट आ रही है, नहीं पे कर सकेंगे, ये मई और जून के 3.7 बिलियन एक्सटर्नल पेमेंट से कैसे करेंगे, ये 1 बिलियन का बॉन्ड कैसे पे होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हैव ए फेथ अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हमेशा अपने हिफाजत में रखा है, और हम सब कोशिश हैं कि इसमें जितनी जल्दी बेहतरी लाई जा सके लाई है। जो गिरावट हो रही थी मईशत में वो रुक चुकी है, लेकिन अब जो बेहतरी की तरफ उसका जो हमारा पूरी कोशिश और तरक्की की तरफ उसको यानी तेज़ी के साथ चलाना है वो अंडरवे है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आपको याद होगा जब गवर्नमेंट ने लिया तो उसको करीबन 6% GDP ग्रोथ थी, लेकिन प्लीज़ डोंट फॉरगेट, मैं अभी आपके साथ GDP नंबर शेयर करूंगा कि 5 साल की एवरेज GDP ग्रोथ अब टोटल कितनी हुई, और फिर 4 साल जो आने वाले थे 18-22 में क्या हुई। आई विल शेयर द नंबर्स विद यू। लेकिन 6% तो थी, लेकिन डोंट फॉरगेट कि दूसरे साल में वो -1% थी, तो बेस बहुत नीचे चला गया था। तो उस जब आप सब माशाल्लाह समझते हैं कि जब बेस नीचे जाता है तो फिर ऑब्वियसली जो आपकी जो नेक्स्ट ईयर है या आने वाले 2-3 साल है, एक नई बेस लाइन आपकी बन जाती है। हमारा इस गवर्नमेंट ने जो फिस्कल डेफिसिट था वो अनफॉर्चुनेटली जो 5.8% था 2018 में, वो 7.9% पे जा चुका था जब नई गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी संभाली। और प्लीज़ आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि 5.8% में हमारे जो ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद की जो बहुत बड़ी हमारी इन्वेस्टमेंट थी जिसने इस मुल्क में उस वक्त दहशत गर्दी का खात्मा किया, वो उसमें शामिल थी, वरना ये शायद 4.8% होती। लेकिन वो एक नेशनल रिक्वायरमेंट थी, नेशनल जिम्मेदारी थी। जो आपका ट्रेड डेफिसिट था वो 39.1 बिलियन डॉलर जो है वो वहाँ पहुँच गया 30.9 बिलियन डॉलर से बिटवीन 28 एंड 2022। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था
وہ 4.7% ऑफ GDP पे पहुंच गया, $17.5 बिलियन। इसके अलावा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो श्रंक होके $2.8 बिलियन से $1.9 बिलियन पे पहुंच गई, और जो पब्लिक पॉलिसी रेट था वो 6.5% 2018 में जो था वो 14.25% पे 2022 में नई हुकूमत को हैंड ओवर हुआ। सर्कुलर डेट जो है आपको याद होगा, आप लिखते भी रहते हैं, उसको डिस्कस भी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो उसकी जो इंक्रीज थी पर एनम वो एवरेज 129 बिलियन की इंक्रीज थी। वाई आई एम सेइंग दिस थिंग, 503 बिलियन पे 2013 में नई हुकूमत ने सर्कुलर डेट को टेक ओवर किया, 1148 बिलियन पे छोड़ा, जिसका मतलब है कि एवरेज 129 बिलियन पर एनम की इंक्रीज हुई। वही 1148 बिलियन जो था वो 4 साल की कलीद मुद्दत में 2467 अरब पे पहुंच गया, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 330 बिलियन एज अपोज टू 129 बिलियन पर एनम। तो ये आपकी फिस्कल मैनेजमेंट शो करती है। आपका जो पब्लिक डेट था यानी परसेंटेज GDP जो 18 में 63.7% था वो 73.9% पे चला गया। Now obviously this is a huge increase in 4 years, 10% उसमें इंक्रीज हो गई। हम बहुत सुनते थे उस वक्त जो 13-18 के इलेक्शन से पहले कि पाकिस्तान में आएंगे और पब्लिक डेट 10,000 अरब कम करेंगे। वो 10,000 कम करने के बजाय 25,000 अरब से ज़रा कम जो पब्लिक डेट था उसको 49,000 से क्रॉस करके छोड़ के गए, विच मीन्स के इसमें 97% का इजाफा हुआ 4 साल की कलील मुद्दत में। डेट एंड लायबिलिटीज आप सुना करते थे, जहाँ भी वो हुकूमत अपना कोई सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंस करती थी, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो UAE हो, चाहे वो अपना न्यूयॉर्क हो, जहाँ भी जाते थे सबसे पहले वो उनको अच्छा लगता था हायर फिगर। हालांकि वो पब्लिक डेट का हिस्सा नहीं होता लायबिलिटीज, वो तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पे नहीं करना, लेकिन जब पे होगा ज़ाहिर है उसके लिए आपको डॉलर चाहिए। तो वो जो डेट था वो 30,000 अरब इसलिए कहते थे कि वो लायबिलिटीज डाल के तो वो फिर 24,953 नहीं था, वो फिर 29,900 के करीब था, यानी 30,000 अरब कह ले 30 ट्रिलियन। वो ये 49.8 था उसको ये अपना सॉरी जो 29.9 था उसको 59.8 बिलियन पे हम पाकिस्तान का डेट ले गए। पब्लिक डेट एंड लायबिलिटीज ये 100% इंक्रीज है ना। ये कपल्ड विद योर पॉलिसी रेट इंक्रीज और जो हाल है इस वक्त आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसका मेजर बल्क जो है वो अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्ट जैसे डेट सर्विसिंग कहते हैं उसमें जा रहा है। और यही मुल्क जो था इसकी डेट सर्विसिंग 2017 में को 1800 बिलियन रुपए से कम थी, आज ये 7,000 अरब पे करीबन पहुंच चुका है। यानी एक तरफ टैक्सेस की कलेक्शन में इम्प्रूवमेंट तो हुई है, लेकिन दूसरी तरफ हमने अपना मिसमैनेजमेंट की वजह से, अपना डेट कंपाइल करने की वजह से, पॉलिसी रेट बढ़ाने की वजह से उसको हम पे ले गए हैं और वो मेरे नजदीक बिल्कुल वो अनसस्टेनेबल है। तो टू शेड्स के ये जो कुछ हुआ उस पे अनफॉर्चुनेटली जो फाइनल नेल इन द कॉफिन था कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट को शेक कर दिया। भाई आपने अगर कोई सॉवरन कमिटमेंट की है तो वो किसी ABC पार्टी की नहीं होती, वो सॉवरन कमिटमेंट पाकिस्तान की कमिटमेंट बन जाती हैं और हमें उसको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए। लेकिन वो जब देखा कि जी हम हुकूमत से निकल रहे हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया है, तो आपने देखा कि वो ना सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं किया जो कमिट किया था 2019 में और जो ड्यू था, बल्कि उसको रिवर्स कर दिया जो थोड़ा बहुत किया था। दैट शुक दी कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान ग्लोबली फाइनेंशियल अदारों में। तो ये बड़ी बदकिस्मती थी। बहरहाल अभी कुछ इसके अलावा इस हुकूमत की किस्मत या जो भी हो, कुछ ग्लोबल नेगेटिविटीज भी इस एक साल में देखने में आई हैं। मसलन आपने देखा कि जो ग्लोबल GDP ग्रोथ है उसमें करीबन 2021 से अब तक 50% उसमें कमी आ गई है। यानी जो 6.2% 2021 में जो ग्लोबल GDP ग्रोथ थी वो कम होके अब 2.8% पे आ गई। तो ये दिस इज वन इंडिकेटर। ग्लोबल इन्फ्लेशन अगर आप देखें उसमें 85% का इजाफा हुआ और जो ग्लोबल इन्फ्लेशन
2021 में 4.7% थी, वो बढ़ के 8.7% 2022 में उसने क्लोज किया है। तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर ज़ाहिर है कि इस ग्लोबल विलेज है और हर चीज़ का जो इम्पैक्ट होता है वो दूसरे तमाम ममालिक में जाता है। ऑल्दो इन्फ्लेशन अब प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 2023 में 7% होगी, अल्लाह करे कि हो, उसका भी हमें फ़ायदा होगा। ग्लोबल ट्रेड जो है वो 5 टाइम्स जो है उसकी ग्लोबल ट्रेड की ग्रोथ में 5 टाइम्स श्रिंकिंग हुई है, यानी 9.4% 2021 में ये अपना ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ थी, वो रिड्यूस होकर 2023 में 1.7% उसको यानी प्रोजेक्ट किया जा रहा है जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं। ये तो चीज़ें थी जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान उसमें आइसोलेटेड तो नहीं रह सकता, उसके ऊपर इम्पैक्ट है, लेकिन शुमी किस्मत के जो उसके अलावा फ्लड्स की जो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी एक कैटास्ट्रोफी देखी, एक बहुत बड़ा अलमिया देखा कि अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स आए, और उसके लिए जो आपने नंबर्स भी आपको पता है कि करीबन हमारे जो फिजिकल लॉसेस एंड इकोनॉमिक लॉसेस वो मिला के करीबन $30 बिलियन से क्रॉस कर गया। आपको याद होगा कि बहुत ग्लोबल UNDP और वर्ल्ड बैंक, प्लानिंग डिवीजन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अपना यूरोपियन यूनियन, इस सब ने मिलके वो सारा सर्वे किया था, और ये नंबर जो है वो यानी अनडिस्प्यूटेबल है, और उसमें 30 अरब डॉलर से तजावज़ यानी 14.9 बिलियन के उसके जो डैमेजेस थे अपना, और जो GDP लॉस था वो करीबन $15.2 बिलियन था। तो उसके लिए आपको याद होगा कि उसकी पूरी एक प्रोसेस हुआ है, एक वर्किंग हुई है उसी लेवल के ऊपर, उसी फोरम पे, और उसकी आपको जो असेसमेंट की गई कि 16.3 बिलियन दरकार होंगे वो सारी रिकंस्ट्रक्शन रिहैबिलिटेशन के लिए ओवर ए पीरियड ऑफ 4 इयर्स। तो आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने सेक्रेटरी जनरल UN के साथ जिनेवा में एक डोनर कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें जो हमें प्लेजेस मिले वो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थे। हमारी जो ऑफर थी यही थी कि जी इसका आधा जो है हम पिक करेंगे, और करीबन आप कह लें कि 8.1 बिलियन, और वो 8 बिलियन जो है वो हमारा जो है अफोर्डेबल था ओवर ए पीरियड ऑफ 4 इयर्स, और इतना ही हमें प्लेजेस ज़रा उससे ज़्यादा मिले थे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह द थिंग्स आर ऑन इट्स वे। प्लानिंग मिनिस्टर साहब और उनकी जो मिनिस्ट्री है वो एक्टिवली उसके ऊपर काम कर रही है। तो इंशाल्लाह ये रिहैबिलिटेशन और ये रिकंस्ट्रक्शन का जो फेज़ है बेस्ड ऑन 4RF जो इस वक्त जो दुनिया की रिक्वायरमेंट है। तो अब मैं अर्ज करूंगा कि अभी तक हमने इस हुकूमत ने जो थोड़ी एफर्ट की हैं उसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आपको याद होगा, जैसे मैंने कहा कि 2019 का प्रोग्राम 2022 में ख़त्म हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह एक ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ है, और वो मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हुआ था 2013 से 2016। तमाम 12 रिव्यू वक्त पे ख़त्म हुए, प्रोग्राम ख़त्म हुआ। आपको याद होगा कि इसी शहर में तमाम मल्टीलैटरल जो की अदारे हैं उनके प्रेसिडेंट की MD आए, और उन्होंने इसी श्रीनगर होटल में हमारे साथ बैठ के मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान को अपलॉड किया, रिकग्नाइज़ किया। उसमें डॉक्टर किम वर्ल्ड बैंक के शामिल हैं, उसमें श्री मुलानी जो उसको MD थी वर्ल्ड बैंक की, जो आजकल इंडोनेशिया की फाइनेंस मिनिस्टर है। उसके बाद अपना क्रिस्टिन लगार्ड जो MD IMF थी, फिर आपके प्रेसिडेंट जिन 2 दफ़ा है एशियन डेवलपमेंट बैंक के, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चाइना के, और फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट नकऊ 2 दफ़ा है। तो ये वो वक्त था कि जब पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान वाज रिकग्नाइज्ड, कोई कह रहा था सेकंड चॉइस प्लेस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई कहता था फॉरगेट अबाउट नेबर, लुक एट इंडिया। हमने वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एज ए कंट्री, एज ए नेशन लूज़ की है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हम अगर मेहनत करेंगे तो आई एम श्योर विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी। जहाँ तक IMF के अलावा हमने पूरी कोशिश की है, एट बहुत ह्यूज पोलिटिकल कॉस्ट पे की है। इतने मुश्किल रिफॉर्म्स नई हुकूमत जो आती है 5 साल के मैंडेट लेके वो तो कर सकती है, लेकिन एक हुकूमत जिसको पता है कि 14 महीने उसके पास हैं, तो उसके लिए ये अच्छा खासा एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो होता है कि ये हम क्या कितनी। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की खातर ये जो पॉलिटिकल कॉस्ट की सेक्रीफाइस की है इट वाज वर्थ, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी और रोड हो चुकी थी, आपको कोई डील करने के लिए तैयार नहीं था। तो वो तमाम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, वो पावर सेक्टर, वो गैस सेक्टर, वो फिस्कल रिफॉर्म्स, वो राइज का प्रोग्राम जो फिस्कल रिफॉर्म्स के हवाले से इंक्लूडिंग हार्मोनाइजेशन ऑफ GST इन पाकिस्तान, जिसके
कई सालों से पेंडिंग था और वो प्रायर एक्शन ही कर पा रही थी पिछली हुकूमत पिछले 3 से 4 साल में, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आके मेरे आने के बाद वो तमाम पेंडिंग 4 प्रायर एक्शन पूरे हुए एंड वी आर रेडी कि जब हमारा IMF का अल्लाह करे कि 9th भी जल्दी हो तो उसके बाद वो ड्यू है कि वो ऑटो आपको पेमेंट होगी, क्योंकि दे हैव कंफर्म्ड कि पाकिस्तान ने राइज टू प्रोग्राम की जो पॉलिसी लेंडिंग 450 मिलियन वर्ल्ड बैंक की है और 250 मिलियन एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की को फाइनेंसिंग है जो ओरिजिनली 450 थी, 200 उन्होंने फ्लड में रीपर्पस करके दे दी, तो वो 700 मिलियन आपका वो भी ड्यू है। तो ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि इसका रिवाइवल इसलिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान की एक क्रेडिबिलिटी जो सॉवरन कमिटमेंट 2019 में थी और जो रिवर्स की गई उसको ठीक किया गया। इसके अलावा ऑस्टेरिटी मेजर्स मुझे रिपीट करने के आपका टाइम नहीं लेना चाहता, वो आपको सब तफसील मौजूद है कि इस हुकूमत ने अनटारगेटेड सब्सिडीज़ को ख़त्म किया, ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए, वो सारा पब्लिक हो चुका है। हमने इस प्रोसेस पे पेनफुल काम भी करने पड़े। जाहिर है कि अगर एक घर में आपकी आमदनी ऑल ऑफ ए सडन कम हो जाए, आपके रिसोर्सेज कम हो या एक बिजनेस में या फिर इंडस्ट्री में, तो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। आपने अपना पेट काटना होता है अपने तो आपके लिए चॉइस क्या थी? या तो वो 6400 मिलियन का डेफिसिट कैरी करते खर्च करने का एक्सटर्नल में पर क्वार्टर, तो आप 2 क्वार्टर में फारग हो जाते एज ए कंट्री। तो वो होता जो वो कह रहे थे कि जी डिफॉल्ट होगा फिर श्रीलंका बनेगा। तो दूसरी चॉइस ये थी कि जी हम सॉवरन कमिटमेंट, चाहे वो बॉन्ड्स हो चाहे वो कोई और पेमेंट हो, वक्त पे अदा करें। हर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी दैट, और उसके बाद हम अपनी दूसरी ज़रूरियात के ऊपर अपनी एक्सटर्नल रिसोर्सेज अवेलेबल को खर्च करें। तो इसीलिए उसके बाद जो सॉवरन कमिटमेंट्स के बाद जो हमारी प्रायोरिटी थी, नंबर 1 फूड एंड फार्मास्यूटिकल्स, नंबर 2 एक्सपोर्ट्स रिलेटेड रॉ मटेरियल और उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि शुरू में बहुत पेनफुल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो LCs की प्रॉब्लम थी वो बहुत हद तक 90% से ज़्यादा वो हल हो चुकी है और उस तरह की अब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली एक साइकिल होता है बिज़नेस का भी, मैन्युफैक्चरिंग का भी, उसमें टाइम लैग होता है, वो लगेगा। इसी तरह हमने जो है अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया है, ऑल्दो ये इन्फ्लेशन के लिए है, मेरी शायद ज़ाती कुछ राय इसमें कुछ मुख्तलिफ भी हो सकती है, लेकिन जो ग्लोबल इकोनॉमिस्ट हैं वो ज़ाहिर है वो कहते हैं जी कि अगर ये एक विशस साइकिल है, हम इसमें फंस चुके हैं। ये मैं वाई आई एम ऑलवेज एनिमी ऑफ डिवैल्यूएशन, आज से नहीं पिछले 30 साल से ये ट्रिगर करती है आपकी सारी प्रॉब्लम्स को। जब डिवैल्यूएशन होती है वो इन्फ्लेशन ट्रिगर करती है, जब इन्फ्लेशन ट्रिगर होती है उसके साथ आपको अपना पॉलिसी रेट बढ़ाना पड़ता है। और ये जो पंडित थ्योरी देते हैं ना कि डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, वो एक एग्जाम्पल नहीं देखते। पाकिस्तान में पहले 3 साल पिछली हुकूमत ने जो मादर पितर आज़ाद छोड़ दिया करेंसी की वैल्यूएशन को, तो आपने देखा कि $800 मिलियन सिर्फ एक्सपोर्ट पहले 3 साल में बढ़ी। ये तो थैंक्स टू टर्फ इन्वेस्टमेंट और उसके बाद जो कुछ हुआ और वो उसका वो फिर आपकी इंक्रीज हुई, वरना आपका उससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। और यू टुक द हिट ऑफ अबाउट $20 बिलियन इंक्रीज इन पब्लिक डेट विदाउट टेकिंग 1 सेंट। तो बहरहाल ये चूंकि हम इस विशेष सर्कल में फंसे हुए हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेंगे और हम इसके ऊपर अप्रोप्रिएट जो है वो चीज़ें होंगी। दूसरा उसमें जो एक मेजर जो रीज़न है यहाँ जो जहाँ भी आज हम खड़े हैं वो है यानी लॉस ऑफ फेथ कह लें, लोग घबराए हुए हैं, परसेप्शन लोगों की मार्केट्स की वो नेगेटिव हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब मैं आया था तो कई लोग मुझे पूछ रहे थे आपने तो कहा $200 200 का नीचे आएगा। यस, आना चाहिए था। उस वक्त रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वाज 197, 217 तक आया। पता नहीं कौन से हिडन हैंड्स हैं कि मैं वाशिंगटन जाता हूँ तो उसकी ट्रेंड को रिवर्स हो गया इस मुल्क में। और आज भी योर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कहता था, आज ब्लूमबर्ग के 2 इकोनॉमिस्ट का आपने आर्टिकल पढ़ा होगा 19 मई को, वो कहता है 244 होनी चाहिए। लेकिन IMF का जो कुछ ड्रामा लगा हुआ है, जो कुछ पाकिस्तान की परसेप्शन मार्केट्स में बनी हुई है, वो सारे फैक्टर जो हैं, जो रिजर्व्स हैं, उसकी वजह से आपका ये एक आर्टिफिशियल जो है करीबन 40-45 रुपए का गैप है। तो अल्लाह करे कि हम आपका भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप सब माशाल्लाह बहुत सीनियर कॉमर्स एंड इकोनॉमिक कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, आप एंकर्स भी आपके इंटरेक्शन होती है। हमें अपने इंटरेस्ट को, मुल्क की इंटरेस्ट को उजागर करना चाहिए, हमें बताना चाहिए लोगों को, ये एजुकेट करना चाहिए। तो इसलिए
میرا خیال ہے کہ جو لوگ گھبرا کے روپے کنورٹ کر کے ڈالر یا سونا رکھتے ہیں ان کو آپ ایجوکیٹ کریں کہ یہ کام کرنا بند کر دیں, پاکستان ٹھیک ہو جائے گا, انشاءاللہ ہوگا, اور اس کا ریٹ بھی ٹھیک ہوگا. دے ول اینڈ اپ لوزنگ منی. میں نے دسمبر 2013 میں کہا تھا لاہور میں گورنر ہاؤس میں جو ایک بہت بڑی بزنس ایک ایونٹ تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ مارک مائی ورڈز, آپ بہتر ہے کہ ڈالر کیش کر لیں, یو ریگریٹ ون ڈے. اس وقت اس کے 111-12 کے پھر رہا تھا, وہ آیا تھا پھر 98 پہ. تو یہ ہماری کرنسی از انڈر ویلیوڈ, اور یہ آرٹیفیشیل ریزنس کی وجہ سے ہے. ہمیں ان کو ایڈریس کرنا ہے اور ہم ایڈریس کر رہے ہیں. یہ آٹومیٹکلی انشاءاللہ اٹ ول امپروو, اللہ نے چاہا تو آپ بھی اس میں اپنا رول ادا کریں. آپ ہم سب کا ملک ہے, ہم سب کا پیارا پاکستان ہے. تو میری گزارش ہے کہ اس میں آپ ذرا ضرور ہماری مدد کریں اور اویئرنیس کریٹ کریں, لوگوں میں کانفیڈنس دیں, لوگوں کو یہ نہ کرنے دیں کہ اپنا میں کنورٹ کروں, میں جا کے XY کنٹری میں جا کے میں اپنے آپ کو میں ڈومیسائل کر لوں, میں 183 دن سے کم پاکستان میں آؤں تاکہ یہاں میں ٹیکس ریزیڈنٹ نہ رہوں. تو یہ میرا خیال ہے یہ آپ اس میں بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے. ہم نے ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی لیے ہیں, کیونکہ نہ صرف ویٹ اور فرٹیلائزر اسمگل ہوتی تھی, اب وہ فارن ایکسچینج بھی بہت ہیوی تعداد میں جب سے ہمارے نیبرنگ کنٹری میں چینج آف رجیم ہوئی ہے, وہ جو باہر سے ہیوج انفلو ان کو ملتی تھی, ان کو ضرورت ہی نہیں تھی فارن ایکسچینج کی, وہ بھی اب ان کی ضروریات کافی حد تک آپ کی مارکیٹ سے پوری ہوتی ہے. تو دیٹ از اندر ڈرین. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے قریباً $6.5 بلین اس یعنی پچھلے عرصے میں چند مہینوں میں ہم نے پے کیے. $5.5 بلین ہم نے نان اپنا یعنی ساورن ڈیٹ یعنی کمرشل بینکس کے ہم نے واپس کیے, اور $1 بلین کا ہم نے بانڈ پے کیا. یہ $6.5 بلین پاکستان نے, جنرلی آپ کو یہاں بہت ساتھی بیٹھے ہیں, دے نو آل دی ڈیٹیل اینڈ ٹرانزیکشنز. جب آپ نان اپنا کمرشل بینکس کو پے کرتے ہیں نان ساورن ڈیٹ جو وز ادر کنٹریز یعنی ان کی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ نہیں ہوتا, تو وہ نارملی آپ کو واپس آ جاتا ہے. آپ کو رینیو یا تو فیسلٹی رینیو ہو جاتی ہے یا رول اوور ہو جاتے ہیں, آپ پے کرتے ہیں, آپ واپس آ جاتا ہے, یا آپ کو لینڈر چینج کر لیتے ہیں. مجھے آپ کو بتائیں کوئی کنٹری جس کا ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ مالی سال کے پہلے دن کم یعنی وہ زیادہ ہے دین دی لاسٹ. ہمارا ایکچوئل ریڈکشن ہوئی ہمارے دسمبر کوارٹر میں, ہم شور مینی آف یو نو کہ آلموسٹ $4 بلین کی ہمارے ایکسٹرنل ڈیٹ میں ریڈکشن ہوئی ہے. اس کی وجہ کہ وہ جو مارکیٹ پرسیپشن بنی ہوئی ہے, جو ایک IMF کی ڈیلے ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے دے آر سٹنگ آن دا فینس کہ جو دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ معاملات حل ہوں گے تو پھر ہم دوبارہ ملک کو لینڈ کریں گے. تو وہ یہ ایک فیز ہے, انشاءاللہ اس میں نکلنا ہے. لیکن ہم نے جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری فرسٹ پرائرٹیز گورنمنٹ کی ہے کہ ساورن جو بھی لائبلٹی ہے کمٹمنٹ ہے مسٹ بی پیڈ آن ٹائم, اور باقی سارا بزنس اس کے بعد ہوگا. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ زندہ قومیں اور جو ڈگنیٹی ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم ثابت کریں کہ جو یہاں تک خبریں آتی ہیں کہ کچھ لوگ باہر بیٹھ کے بیرون ملک یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان کیسے ابھی تک ڈیفالٹ نہیں کیا, یہ کیوں نہیں سری لنکا بنا. بڑی بدقسمتی ہے کہ بھئی بہرحال دی ٹائٹ فسکل ڈسپلن ول کنٹینیو. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنا ریسنٹلی 1 جنوری سے بسپ اسٹائپنڈ بڑھایا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کمزور ترین جو طبقہ ہے جو بینیفیشری ہے اس کا بسپ کا, تو اس کو ہم نے 360 ارب سے 400 ارب کیا تھا, اور 25% اسٹائپنڈ 1 جنوری 23 سے بڑھایا تھا. اسی طرح اس گورنمنٹ نے رمضان ریلیف پیکج جو ہے وہ پنجاب اور KP کے گورنمنٹ سے مل کے 75 بلین کا جو کیا ہے. اوبیسلی یہ لوگوں کی ہیلپ کے لیے اور جو حالات ہیں اس کی وجہ سے. کسان پیکج آپ کو یاد ہوگا 2000 ارب کا کسان پیکج پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا, اور اس کی جو کریڈٹس ہیں دوسری ساری چیزیں دے آر آل امپلیمنٹڈ. یعنی قریباً 1800 کا ہدف تھا, 1700 ارب کے قریب ڈسبرسمنٹ ہو چکی ہے. باجا صاحب کی لیٹسٹ نمبر تھی کریڈٹ تقریباً 1750. آپ کو یاد ہوگا ہم نے 1819 کا ایک بہت اپنا چیلنجنگ ٹارگٹ اپنے لیے رکھا تھا. پرائم منسٹر نے جب کسان پیکج تقریباً الحمدللہ 1700 کراس کر چکا ہے بلین جو ایگریکلچر کریڈٹ ہے. اسی طرح ہم نے انٹرنل اسلامک فائنینسنگ یہ میری اور ہماری پارٹی کی ہمیشہ ترجیح رہی ہے. ہمارے جو الائز ہیں وہ بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں, تو اس کے لیے بھی ہم نے شریعہ کمپلائنٹ 3 سال اور 1 سال کا سکول کا اجارہ وغیرہ ہم نے کیا, تاکہ لوگوں کو چوائس دی جائے
کہ وہ کنونشنل انویسٹمنٹ کی بجائے وہ اسلامک بیس پہ ہو. پھر آپ کو یاد ہے اسٹیٹ بینک نیشنل بینک کی اپیل بھی وڈرا کروائی تھیں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. پچھلے ٹینور میں ہم نے جو کوشش کی تھی, ایک بھائی ہائی پاورڈ کمیٹی بھی بنائی. گورنمنٹ کا پہلی پرائرٹی ہوتی تھی کہ سب سے پہلے ہم اسلامک موڈ میں لیں, اگر نہ ملے تو کنونشنل میں جائیں. 21% بینکنگ پاکستان کی ان ایکٹس کی وجہ سے اسلامائز ہو چکی ہے, 21%. اور اب جو ہم نے دوبارہ اس کو ریوائیو کیا ہے, اپیل کیا ہے, تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اگر اسی طرح ایفرٹس ہم کریں, جو الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے وہ کرے, تو ہم اس کو ایزیلی 50% سے کراس کر سکتے ہیں ان دا ویری نیئر فیوچر. تو آپ کو 5 سال ملے ہیں کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ نے دیے ہوئے ہیں. اسی طرح اس گورنمنٹ نے فارن انویسٹمنٹ پروموشن اینڈ پروٹیکشن بل 2022 کو بھی یہ پاس کروا چکی ہے. بارٹر کی ٹریڈ آئی تھنک از اے گڈ ڈیولپمنٹ. ایران, افغانستان اور رشیا کے ساتھ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں, آئی ایم شیور کہ دوز فیصلے ول ہیلپ ان آور ایکسپورٹس, کیونکہ جب آپ بارٹر کریں گے تو آپ کی امپورٹ اوبیسلی اتنی کم ہوگی, آپ کی ایکسپورٹ. تو دس از کیونکہ تینوں کنٹریز میں بینکنگ ایشوز ہیں, اور اس وجہ سے بیسٹ یہی ہے کہ ان کے ساتھ یہ کیا جاتا, اور وہ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا. جہاں بھی بینکنگ سسٹم 1-2 کنٹریز اور انڈر کنسیڈریشن ہے, یمن ہے, سوڈان ہے, تو سبجیکٹ ٹو کنڈیشنز جو پوری کریں گے تو ہم شاید اس کو مزید ایکسٹینڈ کریں. اب بریفلی کہ ابھی ہم کدھر کھڑے, اور اس 1 سال میں ڈسپائٹ آل دی ڈیفیکلٹیز آئی ایکسپیرینس اے ورسٹ. ابھی تو سوالات کا ٹائم نہیں آیا, حنیف خان صاحب نے پہلے ہاتھ کھڑا کر دیا, اجازت دے دو والے. اب میں عرض کر رہا تھا کہ ڈسپائٹ آل دی کنسٹرینٹس, اور جو میں نے عرض کیا آپ کو کہ جی ایکسٹرنل بھی انٹرنل بھی بیس لائن بھی جو ملی اس حکومت کو, اس کے باوجود جو پرفارمنس ہے وہ آپ کے میں حاضر خدمت کر دیتا ہوں. جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ پروویژنل نمبر 0.29% ہے, وہ آپ کو سارے نمبرز بھی ملے ہوئے ہیں. ایگریکلچر, انڈسٹری اور سروس سیکٹر کے رسپیکٹیولی 1.55, 2.94, 0.86, اس میں ایک نیگیٹو ہے. یہ فلڈس بھی اس میں آئے, اس میں جیسے میں نے کیا گلوبل پریشر بھی آیا, اس میں دوسرے فیکٹرز بھی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 0.29 جو ہے وہ ایک ریئلسٹک اچیومنٹ ہے, اس سے بہتر شاید نہ ہو سکتی. جہاں تک آپ کی سی پی آئی ہے, کنزیومر پرائس انڈیکس, یہ جولائی سے مئی کے نمبرز اب اویلیبل ہیں, اور یہ 29.2% سی پی آئی ہے. اس کو اگر آپ کور انفلیشن دیکھیں, سی پی آئی دیکھیں وہ ہیڈ لائن انفلیشن ہے, آپ کو زیادہ ریلیونٹ جو ہوتا ہے وہ کور انفلیشن ہے. کور انفلیشن آپ کی اربن 16% ہے, اور جو آپ کی کور انفلیشن رورل ہے وہ 20% ہے. یو کین سے کہ ایوریج از اراؤنڈ 18%. میں آفیشیل نمبر دے رہا ہوں. شہباز رانا صاحب بڑے کوہرے نے میرے ہوتے کہ شاید کوئی نمبر میں کوئی رانا صاحب چیک کر لیں نمبرز. تو یہ جو جولائی سے مئی کے نمبر جو ہیں جو مجھے پرووائڈ کیے گئے ہیں, یہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹک جو ہے وہ پلاننگ ڈویژن میں ہاؤس ہے. تو میں اگر کوئی کوئری ہو تو آپ جناب آصف اقبال صاحب سے پوچھ سکتے ہو, آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. یہ بڑے ہارڈ ٹاسک ماسٹر ہیں. تو اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہائر انٹرنیشنل کموڈٹی پرائز میں نے ذکر کیا, کروڈ آئل, ایڈیبل آئل, پلسز, گلوبل سپلائی ڈسرپشنس, ڈیمیجز آف میجر اینڈ مائنر کراپس ڈیو ٹو فلڈ, کرنسی ڈپریسیشن, ایڈمنسٹریٹو پرائس ایڈجسٹمنٹ, پولیٹیکل مشینری آر دی میجر فیکٹرز ریسپانسبل فار دی ہائی انفلیشن. یہ سارے ہیں. آئی مین تو یو کانٹ نیم ون پرٹیکولر فیکٹر. اس پہ وہ بھی ہے جو میں نے عرض کیا کہ یور روپی ڈیویلیویشن اور اس کا امپیکٹ آن دی پالیسی ریٹ, اور جو فیشل سرکل بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور یہ تو آن ٹاپ ہیں یہ سارے جو فیکٹرز ہیں. جہاں تک ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن کا, چیئرمین صاحب یہاں موجود ہیں. چیئرمین صاحب ہیں, اچھا وہ میٹنگ میں ہیں, ان ایس اے پی ایم ریونیو ہیں. آئی تھنک دے ہیو ڈن اے گڈ جاب ڈسپائٹ دی کنٹریکشن آف امپورٹس, جو ہم نے والنٹیرلی کیا ہے اپنے آپ کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے. تو ظاہر ہے اگر امپورٹس کم ہوگی تو ان کا ریونیو بھی کم ہوگا. اس کے باوجود ان کی جو گروتھ ہے اس سال مئی کے اینڈ تک وہ 16.1% ہے, جو کہ پچھلے سال 5,348 ارب روپے انہوں نے اکٹھے کیے تھے. اس سال 6,210 ارب کا فائنل فگر ہے ٹل اینڈ آف مئی. جہاں تک ویریس ٹیکس پالیسیز, ایڈمنسٹریٹو ریفارمس, وہ ہم اس کو کنٹینیوسلی اس کو ساتھ ساتھ کرتے بھی ہیں. کچھ آپ کو بجٹ میں بھی نظر آئیں گے, کچھ آپ نے آلریڈی دیکھا بھی ہے.
मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, टैक्स पेयर की फैसिलिटेशन है, ह्यूमन इंटरफेस को कम करना है इस सारे प्रोसेस में, ट्रैक एंड ट्रेस जैसे अपना ई पाकिस्तान के उसमें आ जाता है कवर में, इसी तरह ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है और ओवरऑल एफिशिएंसी टैक्स मशीनरी की। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे हुकूमत कोशिश कर रही है और इसके साथ साथ जो है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस वो भी पूरी एफर्ट है। बाय द वे अगेन मैं आपको एक फैक्चुअल नंबर शेयर कर लेता हूँ। 31 मार्च तक FPR ने इनका हदफ था 7 लाख नए टैक्स पेयर को रजिस्टर करना, 7 लाख, 7,000 was the target. They have already done 912,392. This is a precise number, 912,392. तो ये कहने से भी एक्चुअल नंबर है टिल एंड ऑफ मार्च। तो इनका हदफ था 7,000 न्यू टैक्स पेयर्स को लाना। प्राइमरी बैलेंस जो था पिछले साल आपको याद होगा जुलाई अप्रैल में वो डेफिसिट था 890 बिलियन का पहले 10 महीनों का। इस साल में पहले जो 10 महीनों का फिगर है वो 99 बिलियन का सरप्लस है। ज़ाहिर है कि अभी 2 महीने अभी इसमें ऐड होंगे तो फाइनल नंबर फिर आपके पास वो भी आ जाएंगे। जहाँ तक करंट अकाउंट डेफिसिट है, जहाँ हमने बहुत एफर्ट करके उसको मार्च में आपको याद होगा पहले इनिशियल फिगर 654 मिलियन था, जो फाइनल फिगर था 750 मिलियन का सरप्लस था इंस्टेड ऑफ डेफिसिट। जो क्यूमुलेटिव फिगर है जुलाई टू अप्रैल वो 76% उसमें इम्प्रूवमेंट आई। जो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा पिछले साल 10 महीने का था वो था अपना 13.7 बिलियन, 13.7 अरब डॉलर। दैट हैज़ नाउ रिड्यूस टू 3.3 बिलियन डॉलर और हमारे पास 2 महीने हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसने हमें यानी सस्टेन किया है और हमने पेमेंट्स करने के बावजूद ये जो डिसिप्लिन हमने एनफोर्स किया बड़ा पेनफुल था और बिजनेस और ट्रेड इंडस्ट्री के लिए भी मुश्किलात थी, लेकिन ये ज़रूरी था ताकि हम अपने नेशनल डिग्निटी और कमिटमेंट्स को वक्त पे ऑनर करते उसको प्रोटेक्ट करते। जहाँ तक ये है जी इम्पोर्ट्स का नंबर भी दे देता हूँ जी, अब सर्वे में भी अवेलेबल हैं। ये जुलाई मई के नंबर्स लेटेस्ट मेरे पास हैं। ये जो पिछले साल 72.3 बिलियन 72.3 बिलियन डॉलर जो इम्पोर्ट थी वो रिड्यूस होके कॉन्ट्रैक्ट होके 51.2 बिलियन डॉलर है। ये 11 महीने के नंबर, इसमें 29.2% की कमी आई है, 29.2% की। एक्सपोर्ट्स में भी डिक्लाइन है, आपने भी देखा होगा, उसमें ग्लोबल और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, उसमें 12.1% की कमी आई है। इम्पोर्ट्स में 29.2% की और एक्सपोर्ट्स में 12.1% की कमी आई है। ये पिछले साल 28.9 बिलियन डॉलर थे जो कि इस साल 25.4 बिलियन डॉलर हैं अभी तक, लेकिन चूँकि इम्पोर्ट्स की कमी ज़्यादा है तो दैट टर्न दी करंट अकाउंट डेफिसिट टू करंट अकाउंट सरप्लस इन मार्च में, और इनिशियल नंबर अप्रैल के भी सरप्लस है। रेमिटेंसेस में भी 13% की कमी है, ये 22.7 बिलियन डॉलर है एज़ कम्पेयर टू 26.1 बिलियन डॉलर पिछले साल 10 महीने के मुकाबले में। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो पिछले साल 1523 मिलियन डॉलर थी 10 महीने में, वो इस साल 1170 मिलियन डॉलर है बिकॉज ऑफ दी यूक्रेन वॉर, कोविड, फाइनेंशियल टर्मोइल, ग्लोबल जो FDI फ्लोज हैं बिकॉज ऑफ दी सिचुएशन, तो उसका सारा है। तो मैं अब सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि इस हुकूमत ने जैसे मैं अर्ज़ किया कि बहुत ही टफ और बहुत ही मुश्किल फैसले किए हैं जो कि उसके लिए बहुत बहादुरी की ज़रूरत थी, और मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में इस हुकूमत को ये तारीख़ याद रखेगी कि सियासत के ऊपर रियासत को तरजीह दी और उसके हवाले से जो मुल्क को जो लूमिंग थ्रेट ऑफ डिफ़ॉल्ट था उसको अवॉइड किया, और जो इकॉनमी जो क्रिपल और जो बिल्कुल बैठ रही थी और अल्लाह माफ़ करे डिफ़ॉल्ट के नतीजे जो कुछ होते हैं आपको भी पता है, आपने देखा भी है रिसेंटली एक आध कंट्री में, तो उसको रेस्क्यू कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है, और जो हमारा अभी फिस्कल ईयर जो इंशाल्लाह जून के एंड में ख़त्म होगा, इस पर हम आप देखेंगे कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपने ओवरऑल जो करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज किया 76% रिडक्शन के साथ, जो आपने फिस्कल डेफिसिट जो है 4.6% के किया है 4.9% के मुकाबले में, ये दोनों चीज़ों ने काफ़ी हद तक हैंड होल्डिंग की है इस गवर्नमेंट को, बहुत मुफीद उससे हेल्प हुई है। गोइंग फॉरवर्ड जो हमारा हदफ है वो आपने माशाल्लाह सुना भी होगा,
وہ GDP ग्रोथ का 3.5% है. ग्लोबल GDP जो प्रोजेक्शंस है वो कम है, लेकिन वो जब नीचे जा रही होती है तो वो बहुत नीचे चले जाते हैं, जब ऊपर जा रही होती है तो बहुत ऊपर चले जाते हैं. मुझे याद है जब पाकिस्तान नेगेटिव में जा रहा था फिस्कल ईयर 19 में 19-20 में, तो आपको याद होगा कि वो फिर 2-3% नेगेटिव की बात करते थे ग्लोबल अदारे, और फिर इवेंचुअली हमारा करीबन 1% नेगेटिव फाइनल नंबर हुआ था. तो इस वक्त तो वो, लेकिन हमारी अपनी जो है इस पे आप कहेंगे कि 0.3% से या 0.29% से हाउ कम के 3.5% में चली जाएगी, इट कैन बी वैलिड क्वेश्चन. उसके लिए हम, जो मैंने अर्ज़ किया कि हम एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं, कल आपको तफासील मिलेंगी बजट में इंशाल्लाह. हम इंडस्ट्रियल जो है जितनी सपोर्ट दी जा सकती है वो हम देंगे. हम एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इंसेंटिव्स देंगे. हम IT के सेक्टर को इंकरेज करें जहाँ बहुत बड़ा स्कोप है. हम रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के लिए हमारी पूरी एफर्ट होगी. नंबर्स इंशाल्लाह कल अवेलेबल होंगे. लेकिन जो डायरेक्ट नेक्सस है आपकी GDP ग्रोथ का किसी भी मुल्क का, वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के साथ, और वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का पर्स जो है वो मेरे राइट पे बैठा हुआ है. हम सिर्फ पर्स बंद करके इनको पेश कर देते हैं, फिर ये खर्च करना शुरू करते हैं. वो आपको याद होगा कि PMLN की गवर्नमेंट में द हाईएस्ट, हमने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में 2017-18 का बजट जो था वो डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर PSDP वो 1 ट्रिलियन क्रॉस किया, 1001. इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह जो फेडरल PSDP है वो 1.15 ट्रिलियन यानी 1100 बिलियन से क्रॉस कर रहा है अल्लाह के फजल करम से. तो ये हमें यानी इंशाअल्लाह इसके साथ ये जो हमारा 5 E's का फोकस है, अभी जो मैंने कहा यही पाकिस्तान, ये 5 E's कह ले, फ्रेमवर्क, एक्सपोर्ट, एक्विटी, एम्पावरमेंट, एनवायरनमेंट, एनर्जी, CPEC और 4RF, वो जो रेजिलियंस जो है वो रिकवरी और रिहेबिलिटेशन, रिकन्स्ट्रक्शन. आई थिंक ये जो इसका जो कॉम्बिनेशन है विद स्पेंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, आई वुड नॉट से स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट ऑफ 1150, और आपके सूबे जो हैं बाय द वे उनकी अभी जो पर्स है वो माशाल्लाह काफ़ी रिच है आफ्टर 9 लास्ट NFC अवार्ड, क्योंकि अब तो करीबन 60% अगर आप एडमिन चार्जेस भी एडजस्ट कर लें तो क्लोज टू 60% जाता है सूबों को, और करीबन 40% फेडरल गवर्नमेंट के पास रहता है. तो उनका भी आप देखेंगे कि उनका भी जो PSDP है वो भी स्मार्ट होगा. आई थिंक आई एक्सपेक्ट नथिंग लेस देन 1600 अरब से कम नहीं होगा. तो 1150 प्लस 1600 अरब चारों सूबों का आपने नंबर देखे होंगे, लेकिन मैंने देखा कि जो 2 सूबे हैं राइटली दे हैव ओनली गिवन 4 महीने का PSDP, तो वो उनका फाइनल नंबर नहीं है वो नेक्स्ट ईयर के लिए. तो दैट माइट कंफ्यूज मैनी पीपल, क्योंकि आपको अभी टोटल शायद 1100-1200 नज़र आएगा उनका भी, लेकिन वो अभी 8 महीने की PSDP 2 सूबों की डलेगी आफ्टर द इलेक्शंस. तो ये मैं समझता हूँ कि इसके साथ अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान की जो GDP प्रोजेक्शन है वो हम इंशाल्लाह बिल्कुल अचीव करेंगे. और जो हमारी प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, फूड, वाटर, सिक्योरिटी, एनहांसिंग सोशल फिजिकल एसेट्स, वो हमारी जो SDGs के ज़रिए जो काम हो रहा है उसमें भी आपको इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी. वो चौधरी यासिन इकबाल साहब की सरवाई में एज यू नो कि उस पर भी इक्वल फोकस होता है एज द फोकस इज़ ऑन दी PSDP स्पेंडिंग. तो मैं समझता हूँ कि होलिस्टिक डिजिटल जो इकोसिस्टम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, रैपिड डिलीवरी और इनोवेटिव डिजिटल सर्विसेज, ये हमारा इंशाल्लाह ड्राइव होगा. और IT की एक्सपोर्ट जो हमारा हदफ है, अल्लाह करे कि ये पूरा हो अगले 5 साल में, टू टेक इट टू $15 बिलियन. अभी $2.5 बिलियन है इस वक्त. ये अगले साल के लिए $4.5 बिलियन का हदफ प्राइम मिनिस्टर ने IT इंडस्ट्री को दिया है. रिसेंटली राउंड ऑफ मीटिंग्स हुई हैं, सीरीज ऑफ मीटिंग्स, और लेकिन इजीली अगर 4.5 हम कर गए तो अल्लाह के फजल से 5 साल में 15 बिलियन को अचीव करना कोई मुश्किल नहीं. आपको नेबरिंग कंट्री में ट्रिपल फिगर डिजिट बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट है IT की. इसमें बहुत स्कोप है, और इसके लिए जो भी मुनासिब और डूएबल इंसेंटिव्स है वो इंशाल्लाह कल आपको बजट की तकरीर में हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे. अपना हमारा जो ओवरऑल जो यानी ग्रीन एनर्जी आजकल बहुत फोकस है, एनवायरमेंटल जो मामलात हैं जो और जो क्लाइमेट के हवाले से, तो जो हदफ है कि बाय 2025 हम 20% ग्रीन एनर्जी पे चले जाएं, अपनी टोटल रिक्वायरमेंट्स 30% बाय 2030. और इससे अल्लाह ने चाहा तो हमारी जो प्राइमरी
सेविंग होगी एनर्जी में वो 10 से 15% होगी। तो ये चंद गुजारिशात हैं। मैं आप के अगर कोई सवालात होंगे या मेरे साथियों से वो भी जी बस मैं एक सेकंड इनको अगर आप इजाज़त दें ये इनसे 2-3 ये शेयर कर लूँ नंबर, तो उसके बाद बिल्कुल मोस्ट मैंने बस आपको 2-4 नंबर्स मैं शेयर करता हूँ क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था तकरीर के दौरान मैं आपके नंबर दूंगा। जो मैं 2-4 साल के टेन्योर को कंपेयर एक मैंने कंपैरेटिव चार्ट बनाया, आपको हम वो भी पेश कर देंगे। वो है 2013-17 को 17-18 was an abnormal year, crisis year, and political maneuvering project 2010 which practically launched at that time, which failed in 2022. I always call this project 2010. तो ये 2010 में शुरू हुआ था, 2018 में कल्मिनेट हुआ और 2022 में उसकी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हुई। तो ये जो है मैं जो एवरेज है वो हमने उस वक्त 2013 में 3.9% जीडीपी ग्रोथ को 6.1% पे उस वक्त भी हम लेके गए थे और उसमें जो चेंज थी वो करीबन 2.2 की थी और जो हमने जो अगले 4 साल थे वो हालांकि सेकंड ईयर -1 था लेकिन चूंकि छोड़ा 6.1 तो नेट देयर इज नो इंक्रीज। इसी तरह जो जीडीपी आपका जो डॉलर में टर्म्स में जो साइज है वो 259 बिलियन से 357 बिलियन पे आपकी गई, विच वाज ऑलमोस्ट $100 बिलियन इंक्रीज इन जीडीपी। और अगले 4 साल में जो पिछले थे उसमें 18.7 या 19 बिलियन का, सो 100 बिलियन की जीडीपी इंक्रीज एंड 19 बिलियन की जीडीपी इंक्रीज। इसी तरह पर कैपिटा इनकम में $322 की इंक्रीज थी और अगले में ऑलमोस्ट स्टेटस को था। और जो आपके जो पब्लिक डेट के नंबर मैंने आपको साथ दे दिए थे कि 25,000 से ऑलमोस्ट हम अनफॉर्चुनेटली 49,000 क्रॉस कर गए हैं और पब्लिक डेट एंड लायबिलिटीज हम 30,000 से 60,000 के करीब पहुंच चुके, 59,772 बिलियन टू बी प्रिसाइज। तो विद दीज वर्ड्स आई थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग। मैं अपना चौधरी आसिम इकबाल साहब को सर 2 मिनट लूंगा। जी ये जरा ये एक और गुजारिश सेकंड रहीम, जैसे कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने आपको बताया कि डेवलपमेंट के ऊपर 2018-17 में 1,000 अरब था, वहाँ से जब हम छोड़ के गए तो 2022 में जब दोबारा इस वजारत को संभाला तो डेवलपमेंट बजट 550 अरब रह चुका था और इस साल इसे जब 1100 किया है तो ये पाकिस्तान की तारीख में गालिबन पहली दफ़ा 2 सालों में डेवलपमेंट बजट के अंदर 100% इजाफा है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैं आपकी मीडिया पे कवरेज देख रहा था कि इकनॉमिक सर्वे में तमाम टारगेट्स जो हैं वो शायद मिस हो गए हैं। देखिए ये जो साल गुज़श्ता साल था या जो रवां साल ख़त्म होगा, दिस वाज एन ईयर ऑफ फोर्स मेजोर। ये फोर्स मेजोर का ईयर था जिसमें 3 अनप्रेसिडेंटेड हादसे पाकिस्तान की मईशत को सामना करना पड़ा। पहला हादसा तकरीबन $50 अरब का तजारती खसारा जिसके पीछे $84 बिलियन की इंपोर्ट थी जो गैर जिम्मेदाराना तौर पे की गई, जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के तमाम ज़खायर उड़ा गई। दूसरा जो हादसा था आखिरी सहमाही में वजारत ख़जाना ने ज़ीरो रिलीज़ की डेवलपमेंट बजट के लिए, जिससे तकरीबन 240 अरब रुपया जो डेवलपमेंट बजट के ज़रिए मल्टीप्लायर बनता है इकॉनमी में वो जारी नहीं हुआ। और तीसरा बड़ा हादसा क्लाइमेट डिज़ास्टर था जो पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं बल्कि दुनिया में किसी मुल्क ने उस स्केल की क्लाइमेट डिज़ास्टर का सामना नहीं किया जो $31 अरब का था। तो लिहाजा जो साल फोर्स मेजोर का साल हो जिसमें इतने बड़ी माशी और कुदरती आफात आई हों, उसमें आप उस साल के नंबर्स को टारगेट्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता एक ये तासुर जाता है कि जैसे एक नॉर्मल साल था और उसमें नंबर्स जो हैं वो पीछे रह गए। ये 3 मैं आपको बताई हैं बातें कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा कंज्यूमरिज्म बेस्ड तजारती खसारा किसी हुकूमत को नहीं मिला।
کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا تھا کہ ایک پورے کوارٹر کا ڈیولپمنٹ بجٹ کی زیرو ریلیز ہوئی ہو. اور تیسرا یہ کہ 31 ارب ڈالر کا جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر, سو دس واز این ایئر آف فورس میجور. لہٰذا اس کے ٹارگٹس کا اور اس کے نمبرز کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے برائے مہربانی جب آپ اس اکنامک سروے کی لوگوں تک معلومات پہنچائیں تو اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھیں. آخری بات یہ کہ اس ڈیولپمنٹ بجٹ کو جب ہم نے ڈبل کیا ہے, ایک چیز جو میں آپ کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں, ہائر ایجوکیشن کمیشن کو پچھلی حکومت نے نشانہ بنایا اور اس کا تعلق پاکستان کے نوجوانوں سے براہ راست ہے. ہم نے 2 سالوں میں ہائر ایجوکیشن بجٹ کو 26 ارب سے اٹھا کے 60 ارب روپے پہ پہنچایا, جو 131% اضافہ ہے ڈیولپمنٹ بجٹ میں. سو ہائر ایجوکیشن کمیشن میں کبھی تاریخ میں اتنا بڑا اضافہ نہیں ہوا جتنا ہم نے کیا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق براہ راست ہمارے مستقبل اور نوجوانوں سے. اور آخری بات یہ کہ اس دفعہ ترقیاتی بجٹ میں تقریباً پرائم منسٹر کے قیادت میں 80 ارب روپے کے ایسے انیشیٹوز ہیں جن کا براہ راست تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے. یا وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں, یا وہ نوجوانوں سے ریلیٹڈ ہیں, یا وہ گرین ریولوشن 2.0 سے ریلیٹڈ ہیں, یا وہ سٹارٹ اپس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, یا وہ ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. فرسٹ ٹائم اتنا بڑا انیشیٹو لانچ کیا جا رہا ہے جس کا تعلق براہ راست ہمارے نوجوانوں سے اور مستقبل سے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اچھا جی بٹ صاحب آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں نا؟ جی مروان لگا یار ڈیفالٹ سے بچے ہوئے ہیں, حالانکہ آپ کے پریڈیسیسر ایک بار نہیں 20 درجن سے زیادہ مرتبہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو گیا. وہ حالے بھی بات نہیں آ رہے. ڈاکٹر صاحبہ نے جب سے یہ بات بتائی ہمیں ٹی وی پہ بھی کہ پاکستان جو آپ بتاتے رہے کبھی ڈیفالٹ نہیں ہوا ہے, تو اس سے قوم کی امیدیں بارائیں. ثانیہ نامائی مئی کے بارے میں قوم نے مذمت کی, اسی طرح بارودی سرنگوں کے بارے میں مذمت کی, اسی طرح آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط سخت رکھی گئی وہ اس کی مذمت کی. اس کی مذمت غریبوں نے کی. غریب کون ہے؟ جن کی فکس انکم ہے. کون ہے؟ ملازمین ہیں, سول اور فوجی ملازمین ہیں. ان کی تنخواہیں وہی کی وہی, ان کی پینشنیں وہی کی وہی. میری ریکویسٹ ہے, اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ ان تنخواہ دار لوگوں کے لیے کل بجٹ میں جتنا کر سکیں انشاءاللہ. جی حنیف خالد صاحب کو میں یہ اشور کرتا ہوں کہ ہم میں حنیف خالد صاحب اور آپ سب کو یہ عرض کرتا ہوں, بلیو می کہ ہمارا پوری کوشش ہوگی کہ جتنی سپیس نکال کے جو کچھ کر سکتے ہیں ضرور کریں سرکاری ملازمین کے لیے, پینشنرز کے لیے, اور انشاءاللہ وی ول ٹرائی آور بیسٹ. ایون ابھی آنے سے پہلے بھی میں یہی کام کر رہا تھا. ہمارا میجر بجٹ کی ورکنگ ہو چکی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کور انفلیشن کا جو ایفیکٹ ہے اس کو ہم ویل کورڈ کریں اور ان کو اس تکلیف کی جو ہے کم از کم اس کی داد رسی کریں. کاش کہ نارمل سال ہوتا, کاش کہ ہمارا بزنس ایز یوزول ہوتا. بلیو می اگر اس طرح کی ان حالات میں انفلیشن ہوتی تو پتہ نہیں ہم کیا کچھ کر سکتے یا کرتے. لیکن حالات کو مد نظر رکھ کے حنیف صاحب انشاءاللہ پرائم منسٹر کا فوکس ہے, ان کی پرائرٹی ہے, اور میں اس پہ خود بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دے ہیں. جو کچھ یعنی پسے ہوئے طبقے کے جو کچھ ہو سکے گا, اسپیس جتنی نکلے گی انشاءاللہ ان کو دی جائے گی. کل انشاءاللہ اناؤنس ہوگا, کل اناؤنس کریں گے. جی جب انٹرسٹ ریٹ تھے 16% تو اس وقت آپ بڑے کرٹیک تھے اس کے, اور آپ نے کہا جی آپ کی اپنی اپروچ میں 22% پہ پہنچ گئے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو دوسرا باقی سارے فیکٹر جو آپ نے ماضی کے گنے وہ تو اپنی جگہ,
लेकिन अगर आप फेयर एनालिसिस के लिए ये भी बता दें कि इस सारे प्रोसेस में ये जो डाउनफॉल है इकोनॉमिक डाउनफॉल, इसमें आपकी हुकूमत कितनी कंट्रीब्यूशन है? देखिए, मैं कियानी साहब अर्ज़ करूँगा कि देखिए वो एक आप भी माशाल्लाह इतने सीजनड और इतने तजर्बाकार हैं, ये देर इज़ नो क्विक फिक्स। मैं हमेशा कहता हूँ या कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ बजट कि जी नई हुकूमत आई है ऑफ कर देगी तो रुक जाएगा। ये एक प्रोसेस के ज़रिए आप वहाँ पहुँचे थे 14% पे, और वो जो है वो ऐसा विशेष सर्कल है। मैं हमेशा इसीलिए 25 साल से ये जंग लड़ता हूँ कि खुदा के लिए सूट पे ना चले। मैं आज आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने 2017 में ये उसके गवाह हैं, जो 3 महीने में रहा, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर 4 महीने, वो मैंने ये एडवाइस किया शाहिद काका नवाजी साहब को उस वक़्त कि आप बिल्कुल डिवैल्यूएशन के रूट पे ना कभी जाएं, आपकी तबाही हो जाएगी, और आने वाली हुकूमत ने उसको बिल्कुल खुला छोड़ दिया। तो ये जो है ये अब ऊपर से आप बाउंड हैं। स्टेट बैंक को आपने फुल ऑटोनॉमी माशाल्लाह दे दी है, और वो भी ऑटोनॉमी जो कि दुनिया के कई ममालिक में नहीं मिलती। वहाँ आप को 1 रुपए को आप हाथ नहीं लगा सकते। तो ये अजीब किस्म का सिनारियो बना है। हमारे लिए प्रायोरिटीज अब क्या चीज़, हम किस चीज़ को ठीक करें। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पॉलिसी रेट 14 से बिल्कुल गया है 21% पे एज ऑफ नाउ, लेकिन वो फिर अब ये रिवर्सल जो है देयर इज अ टाइम लैग, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि एफर्ट हो रही है। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह हम कामयाब हो। दूसरा आपने फरमाया कि इस हुकूमत का उसमें कितना शेयर है। जो प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि आप अगर फेयर एनालिसिस करेंगे, शायद मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे मैंने कहा कि अगर वो आ रहे हैं तो उसको रोका ही जा सकता है, वो रुक गए हैं, तबाही रुक गई है या डिक्लाइन फर्दर रुक गया। इसको हम अब पॉजिटिव ट्रजेक्टरी में मूव कर मैं समझता हूँ कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। लेकिन वो जैसे 3.5% ग्रोथ इज दी की हमारा ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसमें जो तबाही जो आप जो फरमा रहे हैं, ये ना भूलें कि उस तबाही के कई गुना ज़्यादा क्रेडिट इस गवर्नमेंट को जाएगा तारीख में, किसने डिफॉल्ट से पाकिस्तान को बचा लिया, इसने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचा लिया। और वो लोग बैरूनी ममालिक भी कहते थे, अपने भी कहते थे, दिन रात गर्दान लगी हुई थी। अभी इन्होंने कोट किया। तो ये आप कियानी साहब जो ये क्रेडिट देंगे ना, तो वो जो है वो तो देखिए ऑटो है। एक दिन में आप भी माशाल्लाह समझते हैं कि एक दिन, एक हफ्ते, एक चंद महीनों में नहीं वो काबू आ सकता। उसके लिए डायरेक्शन हमने अपनी बहुत मुश्किल और पॉलिटिकल कॉस्ट पे है। कौन चाहता है कि जी आपने इतना बोझ डाल दिया अपने अवाम के ऊपर, लेकिन अनअवॉइडेबल था। गैस का बोझ डला, अपना आपके बिजली का बोझ डला, आपके टैक्सेस 170 बिलियन के नए लगे, और वो आपको तो पता है कि जो डिमांड थी, आस्क थी, वो तो कोई 800 बिलियन की थी। वो तो मुझे और इस टीम को मैं समझता हूँ कि पता है कि कितना मुश्किल था कि हम उस नंबर पे आए। तो ये आपकी जजमेंट है, आप जैसे इसको देखना चाहें, पॉजिटिव देखना चाहें कि आधा ग्लास भरा है तो वो भी देख लेंगे। लेकिन कियानी साहब अगर शहबाज आनंद को कहोगे तो आधा ग्लास खाली दिखा देगा। वो तो मर्जी दिखा लेना जी, जिस तरह मर्जी कर जी। ऐसा आपने बताया कि आर्टिफिशियल गैप है 40 से 45 रुपए का। मुझे थोड़ा सा ये रहनुमाई कर दें, आप इसका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कितने अरसे में इसकी एक्चुअल रेट पे ले आएंगे, या ये ऐसे ही फेक उड़ान में रहेगा? सेकंड, ये जो आपने फिगर बताया कि 29.2 जो इन्फ्लेशन फिगर है उसको अराउंड 30 कर लें। यार 29 क्यों नहीं कर रहे? 29 कर रहे, 0.2 है। ऐसा तो चले कल होगा। ये बता दें कि रिकमेंडेशन 30% से अबव की है, सैलरी में इंक्रीज की या कम है? अच्छा जी, दो सवाल भाई ने किए हैं। एक तो ये देखे भाई, रील तो अब हमने तो नहीं, अगर मैं कहता ना आज ये भाई दी आप फेडरेशन से पूछ लें, आपके ताल्लुक होता है कि उस 19 जून के आर्टिकल से पहले हमारी जो इंटरेक्शन हुई जो बजट के हवाले से फेडरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स, उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके ख्याल में अब क्या रियल वैल्यू है। तो मैंने कहा 240 में, जैसे मैं 200 कहा था लास्ट ईयर। तो वो अब अल्लाह का करम है कि 2-3 दिन के अंदर अपना ब्लूमबर्ग अपने जो है एक्सपर्ट्स ने आर्टिकल छाप दिया। वो होगी जो उन्होंने हाईलाइट किया है ना, परसेप्शन ठीक होना, ये IMF की कन्फ्यूजन क्लियर होना, वो चीज़ें, और आपका उसमें पॉजिटिव रोल अदा करना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, आवाम को समझाना कि भाई ना डॉलर खरीदो भाई, कहीं नहीं जाते, ये कोई और नहीं होगा। तो वो हम मिल के करेंगे तो बिलीव मी इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो मैं अल्लाह के हजूर हमेशा में भरोसा होता है कि अफी सिंसियरिटी के साथ करें, और दूसरा मैंने देखा 98-99 भी आप भी हैं, मैं भी हैं, हिस्ट्री आपके पास है, 69 से 52 पे आया, और फिर यानी कू तक 10 महीने उधर ही था।
20, 13, 14 में 111 इंटर बैंक, 114 मार्केट, और एक बहुत बड़े अपना पिंडी के सियासतदान ने कह दिया कि मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर 100 से नीचे आए। जब चंद हफ्ते 100 से नीचे आए तो हनीफ खालिद को इस्तीफा नहीं ला सके, तो वो तो मेरा कसूर तो नहीं। तो ये हमें ये देखें, वो जो उन्होंने, दिस वेरी वेरी प्रैग्मेटिक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, उसने रीजंस भी दिए हैं। वो खुद कह रहे हैं कि अंडर वैल्यूड है, रीड टू फट, लेकिन क्यों है उसने बता दिया। अब हमें उसको एड्रेस करना है। कुछ चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट कर रही है, जो पॉलिसी मैटर्स हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें जो पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक का एक माइंड सेट है, वो उस मीडिया से ज़्यादा कोई नहीं बना सकता। वो देखे, वो एक नहीं, वो देखे, मैंने अभी अर्ज किया कि पूरी कोशिश करेंगे कि हम इंशाल्लाह नहीं, वो बाय द वे 29 शुड नॉट बी द पैरामीटर, द बेस लाइन शुड बी कोर इन्फ्लेशन। लेट्स बी फेयर, सारी दुनिया में कोर इन्फ्लेशन के साथ चलती है, सीपीआई के साथ नहीं चलती। तो जो कोर इन्फ्लेशन है वो तो 16 और 20 है, एवरेज 18। लेकिन बिलीव मी, पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, वट एवर वी कैन डू वी विल डू। हम पूरी स्पेस निकालेंगे। मैं कह नहीं सकता। सर ये बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी है जिसमें बहुत सारी ऐप्स हैं और वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर, फूड के ऊपर, रिटेल के ऊपर काम कर रही है, वो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में कब शामिल होंगी? और आप ये भी बता दें कि जिस वक्त हालात है, हम चार्टर इकोनॉमी के ऊपर जो है वो आइंदा कोई टॉक्स देखेंगे आपकी और जो आपके अपोजिशन की जमात उसके साथ? जी भाई, जहाँ तक पहला तल्लक है, अगेन प्लीज़ आप उसको इस तरह नेगेटिव ना लें। मैं अननेसेसरी आप पे बोझ नहीं डाला, लेकिन अभी हमने पिछले 3 हफ्तों के अंदर जो ट्वाइस प्राइस चेंजेस हुई हैं, 35 पे हमने डीजल कम किया, 20 पे हमने पेट्रोल कम किया, 17 पे हमने लाइट डीजल ऑयल कम किया और 12 पे केरोसिन ऑयल कम किया। जो पहली 2 आइटम है डीजल की, खासकर डीजल की, वो डायरेक्टली जब 5 पे बढ़ते हैं तो हर चीज़ की किराया बढ़ जाता है और उसका इम्पैक्ट हर चीज़ पे आ जाता है। बिलीव मी, इट इज़ टोटली अनरेगुलेटेड। मैंने बाकायदा रिक्वेस्ट की है चीफ मिनिस्टर्स को कि फॉर हेवन सेक आप बाय गवर्नमेंट रिट इनको फोर्स करें कि कम करें। और ग्रेटफुल टू द सिंध चीफ मिनिस्टर, उसने 40 ट्रांसपोर्टर्स को ख़त लिखा, मुझे कॉपी भेजी, और पंजाब चीफ मिनिस्टर उसी लाइन पे फिर मैंने जब रिक्वेस्ट की उन्होंने भी एक्शन लिए। देखिए, आप भी उस पर बिल्ड करें। दूसरे मुल्कों में कंज्यूमर प्रोटेक्शन सोसाइटीज़ होती हैं, दे आर वेरी प्रोएक्टिव। वो तो यहाँ तक करती हैं कि वो उनका बाइकआउट कर देती है कुछ चीज़ों का, लोग मजबूर हो जाते हैं। यहाँ हमारा वो कुछ नहीं है। आप भी मांगे ना, मैं तो मांग रहा हूँ। मैं जाहिर है कि मैं अब जाके पब्लिक को तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं जिनको कह सकता हूँ मैं ज़रूर कह रहा हूँ। और मैं गुजारिश करूँगा कि आप भी इसमें अपना हिस्सा डालें, कि उनको कहें, उनको नेम शेम करें कि भी इतना कम हुआ तो आपने क्या कम किया, कम करवाएं उनसे। आई थिंक हम सबकी ड्यूटी है कि हम अपना हिस्सा डालें। एक मैं आ रहा चार्ट ऑफ इकोनॉमी पे मेरा तो पुराना सब्जेक्ट है। 2013 में भी 3 साल का मीडियम टर्म बजट के साथ दिया, 2013, 2016, 2014 का बजट। मैं तो कहता रहा, किसी ने मानी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह नए इलेक्शन जब हो जाएंगे, क्योंकि अभी दिस इज़ नॉट द टाइम, ये मुश्किल होगा। हाँ, हो जाए फिर मैं समझता हूँ कि ये एक टॉपिक है, इसको बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए और इसके ऊपर एक कंसेंसस होनी चाहिए। एक ब्रॉडर 10 से 15, 20 साल का रोड मैप बनना चाहिए। एक कोर उसमें आउटलाइन हो कि ये एरियाज है, नो गो एरिया, नो मैटर कौन सी गवर्नमेंट आती है उसके साथ नहीं खिलवाड़ होगा फॉर एनी रीज़न। तो आइडिया तो बहुत पेंडिंग है यार, मैं तो बहुत सालों से लगा, 10 साल हो गए। बिर साहब आप क्या कर रहे हैं? बिर साहब यार तुम क्या कर रहे हो यार? तुसी करो ना, चलो ये बिर साहब आप उनको योग करते हैं। आप सर्वे के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है वो काइंडली अगर शेयर कर दें, उनके अंदर कितनी बेरोजगारी बढ़ी है। और दूसरा ये बताइएगा कि जो मिनिमम वेज है वो पाकिस्तान के अंदर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। आज के दौर में 25,000 से मिनिमम वेज के ऊपर आप समझते हैं गरीब बंदा गुजारा कर सकता है? और जब तक इन्फ्लेशन जो है उसमें डबल इजाफा हो चुका है और जो नए बजट के जो नंबर्स हैं उस पर IMF को ऑन बोर्ड लिया गया है, IMF की इस पर रजामंदी है जो इतना बड़ा PSDP आप शामिल कर रहे हैं डिस्पाइट के बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा। जी भाई, मैं शकील साहब तीनों चीज़ों को जवाब देता हूँ। मिनिमम वेज बिल्कुल एनफोर्स होनी चाहिए। ये वही बात होगी कि डीजल की कीमतें कम हुई और ट्रांसपोर्टर्स ने किराए या तो किए नहीं है, बड़े नॉमिनल किए, और आगे जो उसका इफेक्ट देना था चीज़ों की कीमत वो नहीं हुआ।
तो मिनिमम वेज जो है एक तो इसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, और ऑब्वियसली अगर हम एक तरफ कह रहे हैं कि सैलरीज वालों को होना चाहिए तो मिनिमम वेज की भी ज़रूरत है. वी आर लुकिंग इनटू दिस. ये वो फैसले होते हैं, आपको पता है कि लास्ट फ्यू आवर्स में होते हैं, ये इस वक्त पेंडिंग है, इस पर होगा. जो आपने फरमाया कि चूँकि 25,000 मिनिमम वेज से गुजारा नहीं होता, मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, और इसमें एक रीज़नेबल इसमें इंक्रीज़ ज़रूरी है, और इंशाल्लाह हुकूमत इसका फ़ैसला कल कैबिनेट मीटिंग में करके तो फिर बजट के ज़रिए अनाउंस करेगी. जो आपने कहा कि IMF के साथ जो बजट और शेयर हो रहा है, हम बिल्कुल चूँकि प्राइम मिनिस्टर की जो थी ना जी, आपने चूँकि राणा साहब ने वो इन्होंने रखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, ही इज़ मास्टर. तो इसने वो PM की जो बात थी, वो इन्होंने, आपको पता है, स्टोरी एक छापी थी. तो उन्होंने ये एग्री किया कि हम बजट के नंबर दे देंगे. मैं उस वक्त तक नहीं दे रहा था, तो जब उन्होंने मान लिया तो मैं, ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन था, तो बजट के नंबर हमने उनसे शेयर कर लिए हैं, और यही किए जो आपसे शेयर करेंगे जिस इकनॉमिक सर्वे में है. तो मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, क्योंकि हमारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो. हम कोई इसमें सब्सिडी नहीं दे रहे, हम इस पर कोई, अगर हमारा एक 3.5% ग्रोथ के लिए एक इकोनॉमिक विजन है और हम उसको उधर लेके जाना चाहते हैं, तो वो वसाइल के साथ है. हम फिस्कल डेफिसिट भी कम उस बजट में कर रहे हैं, हम ग्रोथ भी बढ़ा रहे हैं, हम रेवेन्यू भी बढ़ा रहे हैं. तो ये ज़ाहिर है कि इन्फ्लेशन को भी मद्देनज़र रखना होगा, लोगों की तकालीफ को भी करना होगा अपनी ग्रोथ के लिए. जैसे अर्ज़ किया पहले कि जो की शोबाज हैं जो आपकी ग्रोथ को, एग्रीकल्चर इज़ द क्विकेस्ट रिटर्न आपको देता है, IT इज़ अ ग्रेट पोटेंशियल. इसी तरह जो दूसरे मैन्युफैक्चर या दूसरे इलाके हैं उसमें हम सारा कुछ करेंगे. तो टू कंफर्म जी नंबर दिए हैं, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी इशू विद दैट. अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर मैं एक सेकंड इनका सवाल मैं जवाब दे दूं. बाय द वे, जो आपको इकोनॉमिक सर्वे दे रहे हैं उसमें पॉपुलेशन, लेबर फोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट नंबर्स दिए हुए हैं. एक चैप्टर है, 17 चैप्टर है इसमें, 16 की बजाय, और उसमें IT का चैप्टर शामिल है. इसमें लेबर फोर्स सर्वे 2021 के मुताबिक पाकिस्तान में 71.76 मिलियन लेबर फोर्स, जिसमें 7.25 मिलियन बरसरे रोजगार थे, जबकि 4.5 मिलियन यानी 45,10,000 जो है वो बेरोजगार हैं. दिस इज सर्वे 2021 लेबर सर्वे. और इस तरह ये जो आप परसेंटेज निकालेंगे 6.3% है. लेटेस्ट नंबर यही अवेलेबल है, वो हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया है. थैंक यू बादशाह भी. ओ काले मैं अच्छा जी, मैं कह रहा जी डॉक्टर, मेरा नाम मजहर इकबाल है, मैं CNN टेलीविजन से हूँ. 2 पार्ट मेरा क्वेश्चन है. आपने बजट अहदाफ की डिक्लाइनिंग के हवाले से जब वजूहात का जिक्र किया, क्लाइमेट चेंज का जिक्र किया, कोरोना का जिक्र किया, बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया, एक शायद आप भूल गए हैं. आप नहीं समझते कि ये जो अहदाफ हमारे हासिल नहीं हुए, इसमें एक वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, नंबर 1. और ये जो अभी निज़ामी साहब ने सवाल किया मिसाक के हवाले से, तो क्या अब मिसाक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी? और सर, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि 217 पे डॉलर आ गया था, और आपने कहा पता नहीं कौन से खुफिया हाथ हैं कि जब मैं अमेरिका गया तो वापसी पे सूरत हाल चेंज हो गई. सर अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई के मुलजमान सामने आ गए हैं, तो क्या वजह है सर ये खुफिया हाथ जो है आप अब तक सामने नहीं ला सके? थैंक यू जनाब. आपने माशाल्लाह 5-7 सवाल इकट्ठे कर दिए मदर साहब. लेट मी ट्राई टू डील एवरी. देखिए, बिल्कुल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का इसमें बहुत बड़ा शेयर है. आई एम ग्लैड कि आपने ये फ्लैग किया, और ये उस आर्टिकल में भी इसका जिक्र है जो 14% रुपी अंडर वैल्यू है ब्लूमबर्ग के 19 मई के आर्टिकल में. उसका ये भी एक फैक्टर लिखा हुआ है उन्होंने. आई एम ग्लैड कि आपने इसको, मैं उसको मिस कर गया. वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज वन ऑफ मेजर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान. वो आपका जो लेंडर है वो पहले इंतजार करता है कि ये पता नहीं किधर जा रहे हैं, ये पता नहीं आगे क्या होने वाला है, पता नहीं कौन सी इलेक्शन के बाद क्या होगा. आप देख ही रहे हैं. तो बहुत बड़ा है. जो आपने इकोनॉमी का जो चार्टर की बात की, मैं समझता हूँ कि इसकी अशद ज़रूरत है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बिल्कुल काम करेंगे. लेकिन आफ्टर दिस गवर्नमेंट कंप्लीट्स इट्स टेन्योर एंड इलेक्शन के बाद जो भी अल्लाह जिसको जो मौका देगा, और जहाँ भी हम बैठे होंगे उसमें अपना रोल अदा करेंगे, चाहे हम ट्रेजरी बेंचेस भी हो या अपोजिशन, जो अल्लाह को मंजूर है. तीसरा आपने जो कहा वो डॉलर 200, मैं अर्ज करता हूँ, आपने कहा
کہ 217 وہ کون سے, کیا کہا آپ نے؟ آپ نے خود کہا کہ خفیہ ہاتھ ہیں جو کہ صورتحال خراب کر دیتے ہیں, تو میرا سوال یہ ہے سر جی آپ نے وہ خفیات, ایک ہی اس کا سمپل ہے یار, سارے سب خفیات لگے ہوئے تھے. جب ایک فارمر فائنانس منسٹر آف پاکستان تو صوبائی فائنانس منسٹر کو فون کر کے یہ کہے کہ بھائی یہ تم آئی ایم ایف کو سیبوٹاج کرو, یہ مت کرنا لیٹر, تو یار اس کے آگے کچھ رہتی ہے بات. میں نہیں چاہتا ہم پرسنل ہوں, لیکن آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ انفارمڈ ہیں. اس طرح کے ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ چاہیے کہ پاکستان خدا نہ خاصا ڈیفالٹ کرے, اور وہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں. کوئی ری امیجنگ ہو رہی ہے, کہیں ڈی امیجنگ ہو رہی ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے, کوئی سپر امیجنگ ہو رہی ہے. اور بس کرو یار, یہ تماشے بند ہونے چاہیے. اس پہ اکانومی کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے, چاہے کوئی بھی ہو, انکلوڈنگ اس. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل میں نے آپ کو ایک مثال دے دی, اور آپ ماشاءاللہ بڑے ویل انفارمڈ ہیں کہ اس طرح کے کئی اٹیمپٹس کیے گئے ہیں. اور اس میں میں پتہ نہیں فیئر ہے کہ نہیں, میں صرف اندرونی محرکات نہیں اس میں گنتا, میں ایکسٹرنل محرکات بھی گنتا ہوں. وہ پھر مناسب نہیں ہے کہ پبلک میں وہ ڈسکس کیا جائے. ہو سکتا ہے میرے ویوز اوور وائس ہوں, تو میں ہیو ٹو بی فیئر. جی شہباز رانا. فائنلی ویسے تو آپ ڈیٹیل وہ رپلائی کر چکے ہیں, ناظرین نے آج گیٹ بھی بند کی ہوئی, ہم اس شرط کے اندر آئے کہ ہم ان کی بات کریں گے. آپ نے کورن پیشن سے اس کو لنک کیا ہے. فائدہ بھی جو میں کا کوڈ نمبر ہے, میں اس کو تھوڑا سا بتائیے. تو میں کورن پیشن اربن 20 ہے اور دیہاتوں میں 26 چل رہے ہیں, اس کا لنک کرنے زیادہ بہتر ہے. ایوریج رانا صاحب ہو گئی, انہیں نال کر لینا نا 23 نہیں میں ویسے کہہ چلو نہیں, ہم کوئی بالکل ویل ٹیکن. میں جی سر جو پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف کا پروگرام تھا وہ سپٹمبر 2022 میں ختم ہوا. یہ جو ایکسٹینشن نامہ ہے یہ آپ کی حکومت کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کا یہ فیصلہ درست تھا کہ اس میں ایکسٹینشن ہے, یا اس وقت ری نیگوشیٹ کر رہے تھے, یا جو بھی نئی اسٹریٹجی حکومت نے وقت میں بنانی تھی وہ بنانی. نمبر 2, آپ کانسٹنٹلی آپ کا ایک اسٹرانگ ویو ہے اینڈ یو ہیو یور اون پوائنٹس, چاہے وہ ایکسچینج ریٹ ہے چاہے اسٹیٹ بینک کی اکانومی ہے, بٹ دیز views contradict the views of the IMF in most of the time. اس کا مطلب ایک پالیسی ڈفرینس ہے, we have a right to have. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو پوزیشن ہے, اور جو IMF کی آپ نے دیکھا کہ پچھلے 4-5 ماہ سے صورتحال چل رہی ہے, کیا پاکستان کو IMF کے پاس جانا چاہیے 30 جون کے بعد؟ اگر نہیں تو آپ کے پاس پلان بی ہے کیا؟ اچھا مہربانی رانا صاحب, ایک تو آپ نے جو وہ نمبرز کوٹ کیے ہیں وہ بھی لے لیتا ہوں. میں نے جیسے کہا کہ بھائی میرے وہ پی بی ایس کے ونگ ادھر ہے, تو ہم ویل ٹرائی اور بیسٹ, بلیو می. اور یہ لاسٹ چیز ہے جو باقی ہمارا ان کی پی ایس ڈی پی ڈیولپمنٹ سے لے کے منسٹریوں تک آپ کو بھی پتہ ہے کہ آئی بی سی کیا دی, پھر اس کے بعد کیا ہوا, جو سارا پروسیس یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے, لاسٹ ہوتا ہے. اور اس کے لیے میری پوری کوشش ہوگی کہ جتنی اسپیس نکال سکتے ہیں ہم نکال لیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹرائک انفیئر ہے, یہ اسٹرائک کا کوئی تک نہیں ہے. اور مجھے افسوس ہے بھئی آپ ویٹ تو کریں نا. یہ ایک عجیب کلچر بنا دیا پچھلے 3-4 سال میں کہ آپ سال میں 3 دفعہ آ جاتے ہیں اسٹرائک کر کے. یہ کیا طریقہ ہے بھئی؟ جو آپ کا ملک ہے, آپ کا خزانہ ہے, کسی حکومت نے اپنے جیب سے نہیں منسٹروں نے دینا. تو یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. میں نے ان کو جو یہاں کے جو یونین ہے اسلام آباد کی, ان کو میں نے پرسوں مجھے ملے, میں اترا, وہ باجوہ صاحب وغیرہ, میں نے کہا یار اس طرح نہ کرو, یو شوڈ ویٹ اینڈ سی. اگر آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی مناسب نہیں ایکشن لو تو پھر تو بنتا ہے آپ پہلے ہی اپنی لیڈری چمکانے کے لیے, تاکہ یہ ہو کہ کل جو بھی ہم اچھا کرے یہ کہیں کہ ہم نے کروایا, یہ جا کے لیڈرشپ اپنی چمکائے. تو یہ تو آئیڈیلی تو کرنا چاہیے, کل نہیں اناؤنس کرنا چاہیے. جی یہ ہڑتال کا نتیجہ ہے نہ, میں تسی لکھو نا, میں ویسے کہہ رہا مجھے افسوس ہوتا ہے یار, تسی بھی کہہ کے آندے نا. نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ بھی ان کو سمجھاتے بھئی کل بجٹ آ رہا ہے, ویٹ تو کریں نا. اگر آپ کو نہیں کوئی ڈیو آپ کا شیئر ملے گا ان ٹوٹیلٹی, آئیڈیلی تو شاید, تو انشاءاللہ دیکھیں ہم بھی اللہ سے سب کو خدا خوفی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سب سے زیادہ حق ہے کہ جو سپیس ہم نکال کے ان کو دے سکتے ہیں, وہ سرکاری ملازمین ہوں, وہ آپ کے پینشنرز ہوں, ان کو ہمیں لک آفٹر کرنی چاہیے, اور انشاءاللہ کریں گے. آئی ایم شیور یو ول بی سیٹسفائیڈ. سوری ایک میں معافی چاہنا جی, انہوں نے وہ جو دیکھیں رانا صاحب, آپ کا بھی میرا پالیسی اختلاف ہے, میں جو کہتا ہوں آپ الٹا لکھتے ہیں, تو اگر میرا اور اگر آئی ایم ایف کا پالیسی اختلاف ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں بھی ایک ہیومن بینگ ہوں, میں بھی پاکستانی ہوں, آپ بھی پاکستانی ہیں. بھئی میں اپنی پریکٹس سے کہہ رہا ہوں, میں اپنے ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں, جو میں 25 سال سے دیکھ رہا ہوں, اور آپ اپنے, اور میں نے اس پروسیس سے بھی گزرا ہوں.
मैं 60 से 52 भी देखा है, मैंने 114 से 104 भी देखा है, मैंने उसको 4 साल स्टेबल भी देखा है, मैंने ब्लूमबर्ग की 12 दिसंबर 2017 की रिपोर्ट भी पढ़ी, आप भी अभी गूगल करके देख लें। पाकिस्तान रुपी हैज़ बीन मोस्ट स्टेबल करेंसी सिंस 2014 टिल रीसेंट स्लाइड, मुझे अभी छोड़े 3 हफ्ते हुए। तो बात ये कि माइंडसेट की बात है, जो ये समझते थे कि जी इसको अगर 10 रुपये डिवैल्यू कर दे तो 3% इन्फ्लेशन होगी, वो फूल्स पैराडाइज में रहते। वो अगर उस वक्त 4 CPI थी और 3 हो जाए, डबल हो जाती, लेकिन वो समझ नहीं आती। हर एक अपनी अपनी सोच है, हर एक अपनी अपनी वो उसकी स्टडी और पॉलिसी। तो ये तो हमें सबको है ना जी, राइट, पर्सनल है, इट्स नॉट गवर्नमेंट व्यू। तो मैं उसको हमेशा उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन व्हेन आई डील ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान तो आपने देखे मैं अकोमोडेटिव हूँ। मैं शायद पहली दफ़ा मैंने शक्ल अपना मुंह उतर कर लिया जो कुछ हुआ है। आपको भी पता है कि पिछले टेनोर्स में क्या होता था। तो ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हम समझते हैं कि हर एक का पॉलिसी जो डिफरेंस है उसको इज्जत और एहतराम के साथ लेना चाहिए। मैं लेता हूँ, मैं हर एक का जो भी कहे, और जो मेरे व्यू में ऑनेस्टी के साथ करता हूँ। कई लोग नहीं वो भी समझते कि शेयर करें, मैं तो करता हूँ, मैंने आपके साथ एक्सटेंशन सॉरी। देखिए राना साहब, अब वो एक पास्ट ट्रांजैक्शन है। आप सवाल करेंगे सितंबर में पिछले साल इस हुकूमत को करनी चाहिए कि नहीं, नो इट इज़ विद हाइंडसाइट। अब आप अगर मुझे आप कहें कि जी आप जब आए थे एंड ऑफ सितंबर और अक्टूबर में आप IMF गए और ड्यू था नवंबर के शुरू में, तो आपको क्या करना चाहिए था? तो मैं ये पता होता कि 7 महीने डिले, मैं पता नहीं क्या फैसला करता। लेकिन दैट इज़ ओवर नाउ। देखिए हमने अपने मुल्क की क्रेडिबिलिटी और उसको भी देखना है कि हमारी एक सॉवरन कमिटमेंट्स हुई हैं माजी की हुकूमत ने की है, वो PTA की हुकूमत की नहीं है, वो इमरान खान की नहीं है, वो पाकिस्तान की कमिटमेंट्स हैं। आई थिंक इवन एट द कॉस्ट ऑफ पेइंग ए पोलिटिकल प्राइस हमें वो पूरी करनी चाहिए, वो हमने की है। एंड वी हैव टेकन अ हिट, अ पोलिटिकल हिट। तो ना प्लान बी, देखिए वो अब आप अभी आशा बीवी को कोट कर देंगे, इन्होंने कमेटी में कह दिया प्लान बी नहीं, प्लान बी है। लेकिन हम प्लान बी तो जाहिर है कि अगर आप को खुदा न खास्ता एक कॉर्नर में धकेल दिया जाए तो क्या करेंगे आप लेट जाएंगे, जब डिफॉल्ट होने दो, या खुदा ने सीढ़ी पाकिस्तान नहीं। देखिए पाकिस्तान में हमेशा कहते हैं एसेंट सॉल्वेंट है। पाकिस्तान के कर्जे अगर पिछले 4 साल में $70 बिलियन से $100 बिलियन में चले गए हैं, तो पाकिस्तान के हजारों बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं। आई कैन काउंट एटलीस्ट $3000 बिलियन के एसेट्स, मिनरल्स और हमारे दूसरे एसेट जो हैं एग्री एसेट्स। आपकी सिर्फ एक गैस पाइपलाइन जो है पाकिस्तान में इस वन ऑफ द लार्जेस्ट, उसकी 40 से $50 बिलियन कीमत है। हमारा लिक्विडिटी क्रंच है और वो बेवकूफ़ी की वजह से है। वो अगर हम अपने आप को एक्सटर्नल अकाउंट स्पेंडिंग में पिछले 5 साल में आंखें बंद करके खर्चे ना करते तो आज हम यहाँ ना पहुँचते। आज $70 अरब से $100 बिलियन के हमारा एक्सटर्नल डेट ना होता, वो शायद 85 बिलियन होता या 87 होता। यू वुड हैव बीन इन बिजनेस। आप समझते हैं राना साहब मैं क्या कह रहा हूँ? मैं 5 साल भी एग्जाइल ल्यूज कटते हैं। हाँ जी साहब, आप एक तो ये जितनी आपकी बातें है ना, ये आम आवाम को तो ऊपर से गुजर गई होंगी, जो उन्हें चलो ए फैसला फिर मेरा बैठन था। लो जी, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए जो बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर पिसे हुए हैं, उनको तो चाहिए कि आप मतलब रोटी जो है 5 रुपए की कब करेंगे, उनको तो इससे है ना कि वो तो महंगाई कम हो। और दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि बच्चा बगल में डलोरा शहर में, मतलब जरदारी साहब ने अभी ऐलान किया, उन्होंने कहा कि मैशियत को अगर ठीक करना है तो उससे मुझसे आगे मशवरा लें और मैं मैशियत को ठीक कर सकता हूँ। तो आपके पास आपके कमर्शियल पार्टनर है, तो आपने उनसे क्यों नहीं मशवरा लिया अभी तक? देखिए मेरी बात सुने कि आपने जो फरमाया ना कि उनको वाकई वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनको इसमें रिलीफ चाहिए। अब रिलीफ गवर्नमेंट सर्टन रिलीफ दे सकती है। अब देखे रमजान शरीफ में 75 बिलियन की रिलीफ गवर्नमेंट ने मोबिलाइज की, वरना वो नहीं होनी थी जो आप आटे के वाले से। अभी भी हमने करीबन 35 बिलियन रखा है। मैं आपको बजट की एक सीक्रेट आउट ही हो गया है इनफ्लो, वो हमने रखा है लोगों के जो कम आमदनी वाले उनको यानी सब्सिडाइज कीमतों में अकॉर्डिंग टू स्कोर कार्ड देने का। आपको पता है रमज़ान शरीफ में गवर्नमेंट रखती है, गवर्नमेंट का तो लिमिटेड है ना वसाइल जो हैं। जो आपने फरमाया कि जरदारी साहब ने, तो मैंने भी कल वो देखी है। अब मैं पता नहीं उसका जवाब दूं, मैंने उनको फौरी मैसेज किया, मैं क्या $50 बिलियन मैंने तो दसो कितने नहीं होते चले आके, मैं तो रिजर्व तो ਵਧਾਵਾਂ ना कि तुम 100 बिलियन ਵਧਾ सकते हो, तो मैं ਛੱਡਣ वाला नहीं। ਤੁਸੀਂ तो ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ, मैं ਰਾਤ अकाउंट भेजे उन्होंने आ गया, यस ब्रदर आई विल डिस्कस विद यू। वो मेरा उनके भाई वाला तलक है, तो
उनकी अपनी सोच है जी, अब हर एक वो है इज एक्सपीरियंस उनका इतना लंबा जी। ये जो आपने एफआईआर रिव्यू का जो फिगर बताया है फर्स्ट मई का जी, वो जाहिर कर रहा है कि 20 जून तक एक मैसिव शॉर्टफॉल होगा एफआईआर के रेवेन्यू में, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि आईएमएफ जो है एक बड़े एफआईआर हदफ के लिए आप पर दबाव डाल रहा है, तो क्या 30% ग्रोथ आप ले सकेंगे अगला माली साल में, जबकि आप एक मैसिव शॉर्टफॉल? मेरी गुजारिश है जी कि शॉर्टफॉल के कई वजूहत हैं भाई। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि आपको भी पता है, मैंने बताया कि इम्पोर्ट्स कंट्रैक्शन के अलावा हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था, और अगर हम ना करते तो फिर आप अपनी जो सॉवरन कमिटमेंट्स हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं, वक्त पे शायद पे ना कर सकते। और हमने जो प्रायोरिटी भी मैंने आपको गिनवा दी, सबसे पहले सॉवरन पेमेंट्स, उसके बाद फूड, देन फार्मास्यूटिकल एंड देन एक्सपोर्ट्स, एंड उसके ये हमारी एक लिस्ट जो थी उसको हमने फॉलो किया। लेकिन जहाँ तक आप सोच रहे हैं कि